start our today's class. What we have completed on Friday. हमने क्या देखा था Friday? Urinary catheter care, Bowel incision elimination. and removal procedure, Yes. then urinary diversion. Urinary diversion. Yes. One another thing is remaining, जो हमने देखा था. About nephrostomy tubes. Nephrostomy tube. Yeah. So let's do a quick revision of our previous class. Okay. So on Friday we have completed urinary catheter care. So for cleaning of catheter, what things you will require? First of all, you have to maintain a strict aseptic technique. So you will require clean gloves or sterile gloves. While providing urinary catheter care, which types of gloves are required? Clean or sterile? Sterile. Any other answers? Which gloves are required? I think both. Yes, both gloves are required. How? Clean gloves for cleansing માટે. Yes. And First we have insertion to. કરવું પડે. Yes. First we Sterile. have to clean the perineal area and give the position. At that time, you will wear clean gloves. And whenever you start the procedure, at that time, you have to wear sterile gloves. So both pair of gloves are required, clean as well as sterile. Then we have seen the catheter insertion procedure and catheter removal procedure. Can anyone tell me how to insert the catheter and how to remove the catheter? Online students? What is the first step? First, explain the procedure to the patient. Yes. First, we have to explain the procedure, why we are doing this procedure, what will happen, like little bit of discomforts and purpose of the procedure, how you are going to do this. So you have to explain everything regarding to the procedure to the patient. Then positioning, yes. We have to give the position. Which position to which patient? Dorsal recommended position for female catheter. Yes. And point position for male catheter. Yes, dorsal recumbent position for female patient and supine with little bit of thighs abducted to the male patient. Then we have to wear clean gloves and we will clean the perineal area. जो भी आपको solution agency में follow होता है वो solution से या एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से हमें पेरिनियल एरिया क्लीन करना है सब आपको फिर उसके अंडर एक वो पैड होता है वो आपको बिछाना है यू हैव टू कीप द रेडी पेशेंट को आपको सब कुछ करके रेडी करना है वो जो सारा आपको कैथेटर ट्रे में जो रिक्वायरमेंट है उसका ऊपर का रैप निकाल के वो सीक्वेंस में ही होगा सो यू हैव टू कीप एवरीथिंग रेडी देन आपको कैथेटर का प्रिपरेशन करना होगा सो अभी आप फिर से वो जो क्लीन ग्लव्स है वो आप निकाल दोगे एंड देन यू विल वियर स्टेराइल ग्लव्स पहन के सब ओपन करके आप डिस्टिल वाटर और सब रेडी करके रखोगे कैथेटर ल्यूब्रिकेट करके रखोगे एंड देन यू हैव टू इंसर्ट द कैथेटर किसमें ज्यादा ल्यूब्रिकेशन करना है मेल कैथेटर इंसर्शन में या फीमेल कैथेटर इंसर्शन में Male. व्हाई Urethra long way. In male, the urethra is longer compared to female. So according to the requirement, हमें उतना lubricate करना है. Then how you will insert? In female, जो नॉन डोमिनेंट है उससे लेबिया हमें ओपन करना है मेक श्योर कि वो क्लोज ना हो जाए यूरिनरी जो मीटर्स है वो विजुअलाइज करना है एंड जो ल्यूब्रिकेटेड कैथेटर था वो हमें सर्कुलर मोशन में इंसर्ट करना है वी डोंट हैव टू फोर्स द इंसर्शन व्हाइल इंसर्टिंग हमें सिर्फ स्लाइटली धीरे धीरे पुश करोगे तो वो अपने आप से अंदर चला जाएगा कब तक जाने देना है अंदर Got to just be urine. yes
वंस यू सी द यूरिन कमिंग इनटू द कैथेटर, फिर आपको थोड़ा और आगे जाने देना है, लाइक 2.5 to 5 सेंटीमीटर थोड़ा और एडवांस करना है. देन वी हैव टू इन्फ्लेट द बलून. जो प्री फिल्ड सिरिंज हमने लगा के रखी थी, दैट वी हैव टू इन्फ्लेट द बलून. बलून इन्फ्लेट करके हम फिर से उसको पुल बैक करेंगे. कब तक करना है? जब तक हमें रेजिस्टेंस फील नहीं हो जाता. वंस यू फील द रेजिस्टेंस, हमें क्या करना है फिर? सिक्योर कर देना है. Yes, we have to secure the catheter in the inner thigh. Inner thigh में जो भी एजेंसी में जो भी टाइप की टेप या ग्लू वाला अडेसिव यूज करते हैं, वो यूज करके हमें स्टिक कर देना है. फिर आपको जितना भी यूरिन आया था बैग में, वो सब नोटिफाई कर देना है. अगर सैंपल लेना हो तो जब यूरिन आता है तभी सैंपल ले सकते हो. हाउ यू विल इंसर्ट द कैथेटर इन मेल? वन थिंग आई फॉरगेट टू आस्क यू, फीमेल में पेरिनियल जब इंसर्शन करते हो तब कैसे क्लीन करोगे? Front हाउ यू विल क्लीन? Left side, right side, then middle. Okay. From downward to upward or upward to downward? Upward to downward. Yes, upward to downward. From clitoris to anus. हमें ऐसे नीचे करके strokes करने हैं. It is not mandatory that पहले left करो then right. Any side you can do, but पहले outer side करना है, then the center portion. This is the sequence. How you will clean in males? Round. In circular In circular motion. motion, yes. पहले जो ग्लैंस पार्ट है वो क्लीन करना है, देन वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द शाफ्ट. ऐसे सर्कुलर मोशन में 2-3 बार हमें क्लीन करना है. ओके. देन हाउ यू विल इंसर्ट कैथेटर इन मेल्स? अगर वो अनसर्कमसाइज है, देन यू हैव टू pull the foreskin backward and then you have to hold the penis at the perpendicular. हमें 90 डिग्री पर होल्ड करना है. एंड similarly you have to insert the catheter in a circular motion. बहुत फोर्स नहीं लगाना है. once you see the urine coming into the catheter, you have to advance the catheter 2.5 to 5 centimeter further. then आपको अगेन बलून इन्फ्लेट करना है. स्लाइटली आपको धीरे से पुल बैक करना है जब तक आपको ऐसे रेजिस्टेंस फील नहीं होता. जब रेजिस्टेंस फील हो जाए, यू हैव टू सिक्योर द कैथेटर. अगर आपने फोरस्किन रिट्रैक्ट करी थी, देन यू हैव टू रिवर्स इट बैक. उसको नॉर्मल पोजीशन में आपको रखना होगा. यू कैन नॉट कीप द फोरस्किन रिट्रैक्टेड. आपने अगर रिट्रैक्ट की है तो आपको नॉर्मल करना होगा. एंड देन यू हैव टू स्टिक द कैथेटर टू द इनर साइड ऑफ द थाई. अंडरस्टूड? Yes. ओके. एंड देन एट लास्ट यू हैव टू डू द डॉक्यूमेंटेशन. आपको सब कुछ डॉक्यूमेंट करना होगा. कितना आपने इंस्टिल किया वाटर, हाउ मच यूरिन हैज कम आउट, एंड एवरीथिंग यू हैव टू डॉक्यूमेंट. पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसा था, सब आपको डॉक्यूमेंट करना होगा. टेल मी अबाउट रिमूवल प्रोसीजर. फर्स्ट स्टेप इज First explain, then यस position. एक्सप्लेनेशन, पोजिशनिंग एंड पोजीशन. आप कैसे दोगे पेशेंट को? सिमिलरली जो आपने इंसर्शन के वक्त दी थी, सेम वैसी पोजीशन देनी है रिस्पेक्टिवली टू द मेल एंड फीमेल. देन आप निकालोगे कैसे? पहले आपको सब ड्रेप करना होगा, बिकॉज वाइल रिमूविंग द कैथेटर देयर माइट बी चांसेस ऑफ स्पिलेज. सो आपको ड्रेप करना होगा कि पेशेंट के क्लोथ्स, बेडशीट वो सब गंदा ना हो. देन जो भी आपने बलून, हाँ यस, यू हैव टू एक्सप्लेन कि अब थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा. एंड जो भी सिरिंज से आपने इन्फ्लेट किया था बलून, टेक अनदर सिरिंज एंड यू हैव टू कंप्लीटली डिफ्लेट. जब तक बंद नहीं हो जाता पानी निकलना, तब तक आपको डिफ्लेट करना है. देन यू हैव टू, हाउ यू विल रिमूव द कैथेटर सडनली इन अ सिंगल स्ट्रोक? No. Yes, we have to remove slowly. हमें धीरे धीरे करके निकालना है, एकदम फास्ट रिमूव नहीं कर देना है. बिकॉज while you are removing the catheter, patient will feel burning sensation. तो हमें slowly निकालना है. And फिर what is our main important task after removal of catheter? It is so important. After 20 means 24 hours के बीच में चेक करना है यूरिन हुआ कि नहीं. हाँ, we have to check for the patient self voiding.
24 आवर्स में पेशेंट ने खुद से वॉइड किया आफ्टर रिमूवल ऑफ कैथेटर, और किया तो कैसा यूरिन है, कितना अमाउंट है, कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हमें खास नोटिफाई करना है। ऐसा नहीं कि कैथेटर निकाल दिया सो पेशेंट कैन लीव, हमें देखना है जब तक उसको वॉइड नहीं हो जाता वी कैन नॉट लीव दैट पेशेंट। Understood? So it is also important task. Then we have seen ureteral or nephrostomy tube. What is this? Nephrostomy tube means क्या है वो? One question, ma'am. Sorry, repeat it. Okay, online students, what is nephrostomy tube or ureteral tube? Direct opening in kidney and ओके, कहाँ से इंसर्ट करते हैं, क्या होता है? इन योर अंडरस्टैंडिंग आप क्या समझते हो नेफ्रोस्टोमी ट्यूब क्या है? आई एम नॉट आस्किंग अबाउट डेफिनेशन बट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? जब आप नेफ्रोस्टोमी ट्यूब ऐसा वर्ड सुनते हो तो आपको क्या दिमाग में स्ट्राइक होता है? व्हाट इज दिस? फ्रॉम वेयर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज नेफ्रोस्टोमी ट्यूब? Insert. Himakshi, you are speaking something but I cannot hear you. Train insert करिए. Okay, no, like kind of. Okay, what is nephrostomy tube? बैक साइड, नॉट फ्रॉम द एब्डोमेन, एब्डोमेन से नहीं इंसर्ट करते, पीछे से बैक साइड में एक होल क्रिएट करते हैं और वहां से जो हम नॉर्मली यूरिन सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन कैसे करते हैं वैसे ही वो होल में से एक कैथेटर जैसा इंसर्ट करते हैं। द कैथेटर इज डायरेक्टली इंसर्टेड इनटू द रीनल पेल्विस और यूरेटर। क्यों इंसर्ट करते हैं? व्हेनेवर देयर इज अ सर्जरी ऑफ यूरेटर, यूरेटर की कोई सर्जरी है लाइक स्टोन रिमूवल की या कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी हुई है, सो ऐसे पेशेंट में हम नेफ्रोस्टोमी ट्यूब रखते हैं। एंड द अनदर इंडिकेशन फॉर प्लेसिंग द नेफ्रोस्टोमी ट्यूब इज टू, अगर कोई पेशेंट के किडनीज आर नॉट वर्किंग वेल, किडनीज फेल हो गई है, सो डॉक्टर विल चेक, किडनीज को एक चांस दिया जाएगा, दे विल डॉक्टर्स विल प्लेस अ नेफ्रोस्टोमी ट्यूब एंड विल चेक कि अभी नेफ्रोस्टोमी ट्यूब प्लेस करने के बाद किडनी फंक्शन कर रही है नॉर्मल। इफ आफ्टर प्लेसिंग नेफ्रोस्टोमी ट्यूब किडनी स्टिल नॉट फंक्शनिंग वेल देन डॉक्टर विल गो फॉर द रिमूवल ऑफ किडनी। बट आफ्टर प्लेसिंग नेफ्रोस्टोमी ट्यूब अगर किडनी ने फंक्शन नॉर्मल कर दिया, किडनी फंक्शन क्यों फेल हो जाता है? बिकॉज देर इज अ ब्लॉकेज इन द यूरिन फ्लो, सो नेफ्रोस्टोमी ट्यूब डालकर यूरिन निकाल देते हैं और किडनी नॉर्मल हो जाए तो डॉक्टर्स कैन कीप द किडनीज एज इट इज। बट अगर नेफ्रोस्टोमी ट्यूब डालने के बाद भी किडनीज नॉर्मल नहीं हो जाती देन डॉक्टर्स हैव टू रिमूव। सो टू चेक कि किडनी का फंक्शन कैसा है तब भी नेफ्रोस्टोमी ट्यूब इंसर्शन होता है। एंड आफ्टर द सर्जरी ऑफ यूरेटर, यूरेटर की कोई सर्जरी करनी हो तब भी नेफ्रोस्टोमी ट्यूब डॉक्टर्स इंसर्ट करते हैं। सो वो बैक साइड से होल करके ट्यूबिंग इंसर्ट करते हैं एंड डायरेक्टली रीनल पेल्विस में से ही नेफ्रोस्टोमी जो ट्यूब होती है वहां पर बैग होती है, वो बैग में ही यूरिन आ जाएगा। अगर इरिगेशन करना हो लाइक पेटेंसी मेंटेन नहीं है, सर्जरी की है, सो देयर विल बी ब्लीडिंग क्लॉट्स। सो पेटेंसी आपको लग रहा है कि ब्लॉक हो गई है, सो हाउ मच अमाउंट यू कैन इरिगेट? 5 ml. ओके, बट आपने 5 ml से इरिगेशन किया, स्टिल द ट्यूब हैज नॉट ओपन, अभी उसकी पेटेंसी मेंटेन नहीं हुई है, तो Inform to PHCP. कैन नॉट इरिगेट अगेन विद द 5 ml। आप एक्स्ट्रा इरिगेशन नहीं कर सकते बिकॉज वो सारा फ्लूइड सीधा किडनी में जा रहा है। ब्लैडर इरिगेशन इज फाइन कि ब्लैडर में ही है, पर ये अगर इरिगेशन करोगे सो द फ्लूइड विल गो इनटू द किडनीज ओनली, सो यू कैन नॉट इरिगेट मोर देन 5 ml। 5 ml तक आप कर सकते हो और अननेसेसरीली तो इरिगेट कर ही नहीं सकते। वेदर देर इज अ प्रॉब्लम कि पेटेंसी में प्रॉब्लम है तब आप इरिगेट कर सकते हो, बाकी अननेसेसरीली ऐसा नहीं कि लाओ 5 ml तो कर ही सकते हैं तो लाओ मैं कर दूं क्लीनिंग के लिए, you cannot do like that. What is the real important point that you have to remember?
Yes. Online students, what is the really important point? Client with nephrostomy not should be less than 30 ml per hour. Okay. And another point? Nephrostomy है, so हमने डायरेक्टली रीनल पेल्विस में डाला है, so every 15 minutes there will be a production of urine. If there is no production of urine in 15 minutes, then you have to notify the PHCP. Understood? दो चीज याद रखनी है, पहले तो 30 ml per hour, एक घंटे में 30 ml से कम नहीं होना चाहिए, and every 15 minutes there must be a production of urine. Urine आना चाहिए. If there is no any production of urine in 15 minutes in a nephrostomy tube, then you have to notify the PHCP. Understood? Okay. Then urinary diversions देखे थे हमने. What is this? Urinary diversion मतलब क्या? We are diverting the pathway for the urine excretion. हमने urine excretion करने के लिए, collection करने के लिए एक अलग pathway बनाया है. So that is called as urinary diversion. उसमें first था ureterostomy. What is ureterostomy? एब्डोमेन पर स्टोमा क्रिएट करिए. Yes. We are creating an opening on the abdomen directly via the ureter. Ureter है, उसको directly हम abdomen पर ही open कर देते हैं. So that is called as ureterostomy. Then continental internal ileal reservoir means, yes, पाउच क्रिएट करिए. हाँ, with the help of using Ileum and ascending colon. टीएम. last part of small intestine and first part of large intestine. वो दोनों का combination करके सर्जरी करके डॉक्टर एक पाउच क्रिएट करेंगे. The pouch is called as cock pouch and उसको हम इलियल रिजर्वायर बोलते हैं. क्यों उसको पाउच बोला? बिकॉज इट इज मेंट फॉर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ यूरिन. वो ब्लैडर का काम करेगा, टेम्पररी यूरिन स्टोर करेगा. देन आफ्टर स्टोरेज यूरिन विल कम आउट ऑटोमेटिकली. नो कैथेटर. Yes. Patient has to manually insert the catheter. There is a valve on the abdomen. ओपनिंग किया है but there is a valve. So यूरिन डायरेक्टली अपने आप से नहीं आएगा. पेशेंट को खुद से अंदर कैथेटर डाल के वो यूरिन ड्रेन करना होगा. नॉर्मली एवरी 4 to 6 आवर्स पेशेंट को इंसर्ट करके यूरिन ड्रेन करना होता है. देन हाउ you have advised patient कि how irrigation कैसे करना है and catheterization कैसे करना है. इरिगेशन में कितना ml यूज कर सकता है पेशेंट? 60 ml. 60 ml. yes. तो पेशेंट को बोलना है कि स्लोली स्लोली लाइक इरिगेट करो. पहले 10 ml डाला, फिर इरिगेट किया, फिर अगेन 10 ml इरिगेट, 10 ml इरिगेट. ऐसे करके इरिगेट करना है. कब तक इरिगेट करना है? जब तक कि क्लीन वाटर बाहर नहीं आ जाता. कंप्लीटली इरिगेट ऐसे क्लीन नहीं हो जाता तब तक इरिगेट करना है. कैथेटराइज कैसे करना है? सो दोनों में क्लीन टेक्निक ही फॉलो करनी है. स्टेराइल टेक्निक पेशेंट कैन नॉट फॉलो. स्टार्टिंग में इनिशियली पेशेंट कितनी बार कैथेटराइज करेगा टू ड्रेन द यूरिन? Every 1 to 2 every 2 hours. to 3 hours. every 2 to 3 hours. और उसको कैसे इंक्रीज करना है? Gradually, weekly. हाँ. सो फर्स्ट वीक अगर क्लाइंट 2 घंटे के बाद कैथेटराइज कर रहा है तो नेक्स्ट वीक क्या करना है? 1 घंटा बढ़ाना है. तो नेक्स्ट वीक के लिए 3 घंटे बाद कैथेटराइज करेगा. फिर उसके नेक्स्ट वीक अगेन 1 घंटा बढ़ाना है. सो उसके बाद 4. सो एवरी वीक द पेशेंट हैज टू इंक्रीज 1 आवर. हर वीक के लिए हर आवर इंक्रीज करना है. तो जब तक कि 4 to 6 आवर्स तक मेंटेन नहीं कर देता, लास्टली 6 आवर्स, एवरी 6 आवर्स तो यूरिन निकालना ही होगा. तो जब तक वहां तक नहीं पहुंच जाता पेशेंट तब तक उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करना है. लुब्रिकेट करके अंदर डालना है. पेशेंट को बोलना है कि रोटेटिंग मोशन में डालना है, फोर्स करके नहीं डालना है. अगर रेजिस्टेंस फील हो रहा है तो क्या करेगा पेशेंट? फोर्सफुली डालेगा. दो, रोटेट करवाएं. हाँ, रोटेट करके डाल सकता है बट स्टिल इट इज नॉट इंसर्टिंग. तो Inform PHCP. इन्फॉर्म पीएचसीबी. यस, पीएचसीबी को इन्फॉर्म करना होगा कि वो अंदर नहीं जा रहा है. मेक श्योर आप पेशेंट को बोलो कि एक बार यूरिन आना स्टॉप हो जाता है तो आप राइट एंड लेफ्ट और कॉफिंग करके कुछ भी करके मूवमेंट करो. सो मूवमेंट से जो भी थोड़ा बचा हुआ यूरिन है वो भी निकल जाए. जब कंप्लीटली एम्प्टी हो जाए देन यू कैन रिमूव द कैथेटर. और
कैथेटर, वो जो कैथेटर का किट है वो सप्लाईज है, पेशेंट हैज टू कैरी विथ हिम, जहां पर जाता है उसको लेके जाना होगा. व्हाट इज सिग्मोइडोस्टोमी? Online students, what is sigmoidostomy? हेमोलार्ज Ureters are इंटेस्टाइन directly, yes, डाइवर्ट करवाना ureters. है स्टोमा तो There is no requirement of stoma. Ureters are directly anastomosed to the sigmoid colon. Last part of large intestine है, वहां पर directly उसको join कर देते हैं, and urine will come out from the anus only. There is no requirement of stoma. What is conduits? Yes. और कहाँ पर एनास्टोमोसिस करेंगे? यूरेटर्स को कहाँ पर ज्वाइन करेंगे? Yes. The ureters are anastomosed with the ileum or maybe with the colon. इलियम के साथ भी कर सकते हैं, लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और कोलोन में भी कहीं पे भी कर सकते हैं, बट देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ स्टोमा. स्टोमा रिक्वायर होगा. वेन एवर देर इज अ स्टोमा, पेशेंट को एक बैग पहननी ही होगी कंपल्सरी, बिकॉज स्टोमा में ऑटोमेटिकली यूरिन ड्रेन होता ही रहेगा. देर इज नो एनी ब्लॉकेज और मैन्युअली निकालना नहीं होता है. सो पेशेंट हैज टू वियर अप्लायंस, जो ड्रेनेज बैग का अप्लायंस आता है, कोलोस्टोमी बैग होती है, वैसा पहनना ही पड़ेगा. सो उसकी केयर कैसे करनी है, स्टोमा की केयर, वो हमें पेशेंट को सिखाना है कि एवरीडे आपको ओपन करके चेंज करना है, फिर पानी डाल के ओपन करना है, सो डायरेक्टली वो स्किन पे प्रॉब्लम ना हो. फिर कंप्लीटली ड्राई करके ही आपको नया स्टिक करना है. अगर गीला होगा तो अच्छे से चिपकेगा नहीं. मेक श्योर कि यूरिन है वो स्किन पर टच ना हो. अगर स्किन पर टच होगा तो स्किन में इरिटेशन होंगे. सो यू हैव टू इंस्ट्रक्ट एवरीथिंग अबाउट द यूरिनरी स्टोमा केयर. ओके, एनी डाउट इन दिस? नो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन. ये सब यूरिनरी डाइवर्जंस करने हैं. सो इट इज ओनली डन बाय द सर्जरी. सर्जरी से ही हम कर सकते हैं डाइवर्जन. सो पेशेंट को डाइवर्जन करने के पहले प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन आप क्या करोगे? सो लेट्स स्टडी अबाउट दैट. इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट इन अ प्री ऑपरेटिव, ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट during including diet, medication, NG tube placement, IV lines, NPO status, pain control, coughing and deep breathing exercise, leg exercise and post operative activity. जो हमने ऑलरेडी पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में पढ़ा था, वो ही हमें प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव में पेशेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देने ही होंगे सारे. रिलेटेड टू डाइट देना होगा, मेडिसिन, एनजी ट्यूब होगी, सो वो पहले से ही आप पेशेंट को बताओगे. आईवी लाइंस, एनपीओ स्टेटस कब तक मेंटेन करोगे, पेन कंट्रोल कैसे करना है, कॉफिंग, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ये सारी एक्सरसाइज टू प्रिवेंट द पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस. पोस्ट ऑपरेटिव जो कॉम्प्लिकेशंस होती है वो प्रिवेंट करने के लिए आप सब ये पेशेंट्स को इंस्ट्रक्ट करोगे. डेमोस्ट्रेट द अप्लायंस एप्लीकेशन एंड यूज फॉर दोज क्लाइंट्स हु विल हैव अ स्टोमा. अप्लायंस एप्लीकेशन आपको डेमोस्ट्रेट करना है. व्हाट इज दिस अप्लायंस एप्लीकेशन? रिजर्वियर बैग हो हाँ, जो रिजर्वायर बैग था, तो पेशेंट को सिखाना होगा, प्री ऑपरेटिव फेज में ही सिखाना होगा कि सर्जरी के बाद देयर विल बी अ स्टोमा. सो कैसे लगाना है स्टोमा पर, वो सब आपको डेमोस्ट्रेट करके पहले ही सिखाना होगा पेशेंट को. एनकरेज टीच बैक. पोस्ट ऑपरेटिवली ऑब्जर्व द क्लाइंट, परफॉर्म द स्टोमा केयर एंड अप्लायंस चेंजेस. हमें प्री ऑपरेटिव फेज में टीच बैक मेथड यूज करनी है. पेशेंट को आपने डेमोस्ट्रेट करके बता दिया, नाउ यू हैव टू टेल द पेशेंट कि मुझे फिर से करके दिखाओ. अभी पेशेंट को आ गया, तो पोस्ट ऑपरेटिव में आप क्या करोगे? आप ऑब्जर्व करोगे कि पेशेंट अब अच्छे से कर रहा है, बिकॉज मैंने सिखाया था. तो पेशेंट अच्छे से स्टोमा की केयर कर रहा है, अप्लायंस चेंज मैंने जैसे सिखाया था वैसे कर रहा है कि नहीं, यू विल ऑब्जर्व इन द पोस्ट ऑपरेटिव. Arrange an enterostomal nurse consult. Also arrange for a visit with a person who has undergone a urinary diversion as appropriate, and if the client is agreeable to visit. उसकी एक स्पेशल नर्स होती है, जैसे आईसीयू नर्स, वार्ड नर्स होती है, वैसे एंटेरोस्टोमल नर्स होती है. ये नर्स कौन से पेशेंट के लिए केयर करेगी? जिनके स्टोमा होते हैं उनके लिए केयर करती है. कैसे स्टोमा की केयर करनी है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है ऐसे पेशेंट को. सो वो नर्स अच्छे से पेशेंट की केयर कर पाएगी. सो यू कैन ऑल्सो अरेंज एन एंटेरोस्टोमल नर्स.
वो नर्स भी आप कंसल्ट कर सकते हो, उनको बुला सकते हो, सो वो हैंडल करेगी पेशेंट को कैसे करना है, सब सिखाएंगे। यू कैन ऑल्सो अरेंज अ विजिट, एक दूसरा पर्सन है हॉस्पिटल में जिसका ऑलरेडी स्टॉमा है, तो आप वो पेशेंट को दूसरे पेशेंट के साथ ऐसे विजिट करा सकते हो कि देखो, वो दोनों डिस्कस कर सकते हैं। वो पेशेंट को जितने भी लाइक ऐसा हो कि आफ्टर स्टोमा हाउ विल आई लुक, क्या प्रॉब्लम्स हो गए, तो वो सब पूछ सकता है पेशेंट को। सो आप वो कर सकते हो, बट मेक श्योर क्लाइंट, दोनों क्लाइंट अग्री होने चाहिए। जो दो पेशेंट को आप मिला रहे हो, सो वो एक मिलने के लिए भी अग्री होना चाहिए, और दूसरा को भी प्रॉब्लम ना हो कि वो दूसरे पेशेंट से मिल रहा है। सो अग्रीएबल होने चाहिए दोनों क्लाइंट्स विजिट करने के लिए, देन यू कैन मेक अरेंज अ विजिट। encourage discussion of feelings including the effects on sexual activities. yes, पेशेंट की सम फीलिंग्स होगी कि मुझे ऐसा हुआ तो क्या हुआ, तो पेशेंट एंशियस होगा, उसको बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। सो आप पेशेंट को बोल सकते हो कि आपको जो भी कंसर्न है, आपको जो भी फील हो रहा है, यू कैन शेयर विथ मी, लाइक सेक्सुअल एक्टिविटीज में कोई चेंजेस होंगे या नहीं। सो ये सब आपको पेशेंट को एनकरेज करना है कि पेशेंट आपसे फीलिंग्स शेयर करे। Next is important point that you have to remember, red point. Monitor urinary output closely after bladder surgery. Irrigate the ureteral catheter if present and if prescribed. Gently with a prescribed amount of type of sterile irrigation solution to prevent the obstruction. Follow the surgeon's prescription and agency policy regarding irrigation. Yes. अगर ब्लैडर सर्जरी करवाई है, मतलब ऐसे ये डाइवर्जन की है, सो ब्लैडर सर्जरी करवाई है, सो यू हैव टू क्लोजली मॉनिटर द यूरिन आउटपुट, बिकॉज देयर इज अ प्लेसमेंट ऑफ कैथेटर, कुछ तो होगा, ब्लैडर सर्जरी है इसलिए। सो वो हमें स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना है यूरिन आउटपुट, इट शुड नॉट बी लेस देन 30 ml पर आवर। जो भी यूरेट्रल कैथेटर अगर डाला है, सो कैसे प्रिस्क्राइब करना है, कितना अमाउंट से प्रिस्क्राइब करना है, कौन से सॉल्यूशन से प्रिस्क्राइब इरिगेशन करना है, सो वो सब हम चेक करेंगे, प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। इरिगेशन कितने अमाउंट से करना है, कौन से सॉल्यूशन से करना है, वो सब हम प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। और इरिगेशन क्यों करते हैं? टू प्रिवेंट द ऑब्स्ट्रक्शन, उसकी पेटेंसी मेंटेन करने के लिए, बिकॉज सर्जरी के बाद देयर माइट बी चांसेस कि सब डिस्चार्ज वेस्ट प्रोडक्ट वहीं से ही निकलेगा, so there might be chances कि वो कैथेटर ब्लॉक हो सकता है। so to prevent the obstruction simply we are irrigating। so जो भी सर्जन के प्रिस्क्रिप्शन है इरिगेशन के रिगार्डिंग, वो हमें फॉलो करने होंगे इन द प्री ऑपरेटिव फेज। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. नेक्स्ट इज पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन। अभी पोस्ट इंट्रा ऑपरेटिव इंटरवेंशन व्हाई वी आर नॉट स्टडिंग? हाँ, बिकॉज इंट्रा ऑपरेटिव जो इंटरवेंशन है, वो जो ऑपरेटिव रूम की नर्स होगी, शी विल हैंडल। उसमें मेन रोल क्या है कि रॉन्ग साइट, रॉन्ग पेशेंट और वो सब सर्जरी ना हो जाए। सो इट इज ओनली इंटरवेंशन। सो पोस्ट ऑपरेटिव एंड प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन क्या करोगे? सो फर्स्ट, जैसे ही आप पेशेंट को लेके आते हो, यू हैव टू मॉनिटर द वाइटल साइंस, यू हैव टू कंपेयर द वाइटल साइंस जो प्रीवियस थे, वो वाइटल साइंस और अब है, वो आपको कंपेयर करने होंगे। असेस द इंसिजन साइट, जो स्टोमा क्रिएट किया है, जहां पर भी इंसिजन है, वो आपको असेस करना होगा। क्या असेस करोगे आप इंसिजन साइट पर? फ्रीडा रीडा स्कोर। रीडा स्कोर से आपको आइडिया आ जाएगा कि इंसिजन हेल्दी है या एनी प्रॉब्लम इज देयर। सो आपको इंसिजन साइट पर रीडा स्कोर असेस करना है। असेस द स्टोमा एवरी आवर फॉर फर्स्ट 24 आवर्स। जैसे ही स्टोमा है, सर्जरी की है, तो आपको 24 घंटे के लिए हर घंटे आपको स्टोमा चेक करना होगा। और स्टोमा कैसा होना चाहिए? इट शुड बी रेड एंड मॉइस्ट। दिस इज सो इम्पोर्टेंट, अंडरलाइन दिस, या फिर कहीं पे भी लिख दो। स्टोमा शुड बी रेड एंड व्हाइट। रेड एंड मॉइस्ट। अगर स्टोमा पेल है या पर्पल। रेड नहीं है, पेल है, स्टोमा पेल है, सो व्हाट डज इट इंडिकेट? ओल्ड स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस। हमने जब ऑन्कोलॉजी पढ़ा था, जब ब्लैडर कैंसर था, कोलोन कैंसर था, और रिमूव करके स्टोमा क्रिएट करते थे। सो स्टोमा के बारे में हमने कल पढ़ा था। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टोमा, नॉर्मल एंड 2 एबनॉर्मल्स। नॉर्मल इज red and moist, noise. red or moist, that is normal stoma. How you can identify this is abnormal stoma? Which colors are there? पर्पल कलर, ब्लूइश कलर। Okay,
If there is purple or bluish color, it is abnormal thing. So what does it indicate? necrosis. Lack of It is necrosis. क्यों necrosis हुआ? ब्लड सप्लाई ना हो Yes, supply हो due to lack of blood supply. अगर स्टोमा पेल है, so what does it indicate? पेशेंट अनेमिक છે Okay, patient is anemic. No, but the main sign, अगर स्टोमा पेल दिखता है तो it indicates कि somewhere bleeding is occurring. ब्लीडिंग हो रहा है, दैट्स वाई आपको स्टोमा पेल दिख रहा है, नॉर्मल सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, दैट्स वाई द स्टोमा विल अपीयर पेल इन कलर. सो इट इज अ साइन दैट देयर इज एन इंटरनल ब्लीडिंग. So you have to remember these three signs. Normal stoma should be always red and moist. अगर ड्राई हो गया दैट इज ऑल्सो एबनॉर्मल. इट शुड नॉट बी ड्राई, वो मॉइस्ट होगा. एंड एबनॉर्मल सर dark blue, purple, dusty color, black color. So all these things are showing that stoma has become necrosed. Necrosed हो गया है stoma. क्यों? Due to the obstruction of blood flow. और pale stoma हो तो it indicates there is bleeding, internal bleeding हो रहा है. So tissue perfusion proper नहीं हो रहा है. That's why वो stoma pale हो गया है. So you have to remember these three signs of the stoma. Understood? yes ma'am. Okay, so assess stoma every hour for 24 hours. It should be red and moist. Monitor for edema in the stoma, which may be present in the immediate post-operative period. Edema भी starting में होगा. Due to surgery, there will be inflammatory reaction. तो थोड़ा edema तो होगा ही starting में. Notify the surgeon if the stoma appears dark and dusky. It indicates the necrosis. अगर stoma आपको dark color का दिखता है तो तुरंत आपको surgeon को notify करना होगा, बिकॉज वो एक कॉम्प्लिकेशन हो गई है, ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है और नेक्रोसिस हो गया है वहां पर. मॉनिटर फॉर प्रोलेप्स और रिट्रैक्शन ऑफ स्टोमा. नोटिफाई द सर्जन इफ ऑब्जर्व. प्रोलेप्स हो गया है या रिट्रैक्शन हो गया है? व्हाट इज प्रोलेप्स एंड रिट्रैक्शन? दिस इज अ स्टोमा. स्टोमा ऐसे रिंग शेप का, मतलब स्किन का ऐसे गोल होगा. आपने देखा होगा कभी पेशेंट को तो पता होगा. सो इट इज अ सर्कुलर, ऐसे सर्कुलर. अगर वो बाहर निकल गया है पूरा, सो देयर इज अ प्रोलेप्स. एंड रिट्रैक्शन मींस वो अंदर चला गया है. सो आपको स्टोमा अंदर चला गया हुआ दिखे या फिर प्रोलेप्स बाहर आता हुआ दिखे, दोनों टाइम में आपको नोटिफाई करना होगा पीएचसीपी को. Assess the bowel function. Monitor for expected return of peristalsis in 2 to 3 days. Bowel function आपको assess करना होगा, check करना होगा daily. You have to auscultate the bowel sound, peristalsis movement है या नहीं, वो सब आपको check करना होगा. नॉर्मल क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 2 से 3 बार नॉर्मल पेरिस्टाल्सिस आ जाएगा, तब तक तो देयर विल बी नो एनी मूवमेंट. बट 2 से 3 दिन में आ जाएगा. अगर 2 से 3 दिन में भी नहीं आ रहा है, दैट इंडिकेट्स which post operative complication? दो से 3 दिन भी हो गए हैं, फिर भी bowel sound absence है, there is no any peristaltic movement, then it indicates which paralytic syndrome. yes. So you have to, that why you have to monitor. Normally 2 से 3 दिन लगेंगे because we have done a surgery जहां पर आप स्टोमा क्रिएट करते हो, conduit surgery है, so there might be chances कि वो bowel थोड़ा irritate हुआ होगा. maintain NPO status as prescribed until the bowel sound return. 2 से 3 दिन तक, जब तक bowel sounds नहीं आते, you have to maintain the NPO status. Monitor for continuous urine flow, that is 30 to 60 ml per hour. सर्जरी की है तो एवरी आवर 30 ml से तो कम नहीं होना चाहिए. तो आपको यूरिन फ्लो ऑब्जर्व करना है, मॉनिटर करना है. इट शुड बी मोर देन 30 और 60 होगा, बहुत ज्यादा अभी स्टार्टिंग में नहीं आएगा. सो बिटवीन 30 to 60 ml per hour यूरिन प्रोडक्शन होगा. अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay. Notify the surgeon if urine output is less than 30 ml or if no urine output occurs for more than 15 minutes. हमें सर्जन को नोटिफाई करना होगा. 30 ml से 1 hour के अंदर 30 ml से कम है तो, और एवरी 15 मिनट्स देयर इज नो एनी प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, बिकॉज स्टोमा है तो डायरेक्टली वो बैग में ही आ जाएगा. देयर इज नो एनी स्टोरेज फॉर ब्लैडर. ब्लैडर होगा तो स्टोर होगा तो देर से निकलेगा, बट देयर इज नो एनी स्टोरेज. स्टोरेज ही नहीं है तो उतने में बाहर आ जाना ही चाहिए. Ureteral stents or catheters, if present, may be in place for 2 to 3 weeks or until healing occurs. Maintain the stability with catheters to prevent the dislodgement. Yes,
यूरेट्रल स्टेंट्स होते हैं. व्हाट इज स्टेंट्स? यूरेट्रल स्टेंट्स मींस जी पेटेंट से यूरेटर नहीं रखी है. हाँ, आपने देखा होगा एंजियोग्राफी में वो कैसे स्टेंट प्लेस करते हैं इन द कोरोनरी आर्टरी, तो वैसे स्टेंट होते हैं. जब भी यूरेटर की सर्जरी हो तो देयर माइट बी चांसेस कि यूरेटर में प्रॉब्लम हुआ है. सो यूरेटर जब तक हील नहीं हो जाता तब तक देयर इज अ प्लेसमेंट ऑफ यूरेट्रल स्टेंट. वो स्टेंट होते हैं. स्टेंट क्यों होते हैं? कि कैथेटर्स को जो यूरेटर्स है वो अच्छे से हील हो जाए और अच्छे से अपना फंक्शन स्टार्ट कर सके. तो जब तक वो हील नहीं हो जाता 2 to 3 वीक्स तक वो अंदर स्टेंट रखे ही होते हैं. बट वी हैव टू चेक कि देयर इज नो एनी डिसलॉजमेंट एंड देयर मस्ट बी अ पेटेंसी. वो स्टेबिलिटी हमें मेंटेन करनी है एंड डिसलॉजमेंट ना हो जाए, कैथेटर हील ना जाए. सो वो स्टेंट हील ना जाए वो हमें ध्यान रखना है. मॉनिटर फॉर हिमेचूरिया. हिमेचूरिया के लिए मॉनिटर करना है. स्टार्टिंग में हिमेचूरिया होगा या नहीं होगा? सर्जरी के बाद पेशेंट का यूरिन देयर विल बी हिमेचूरिया और नॉट? Yes. There Yes. will be hematuria. Yes, after surgery initial period में hematuria होगा. So this is normal. But एक बार यूरिन क्लीन हो गया फिर से हिमेचूरिया स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे हिमेचूरिया कम होता है. सर्जरी के तुरंत बाद देयर विल बी अ रेड यूरिन, देन धीरे 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 वो कम होता जाएगा. बट स्टिल इट इज नॉट डिक्रीजिंग, वो स्टिल उतना ही रेड है, देन इट इंडिकेट समथिंग एबनॉर्मल. सो रिमेंबर दिस थिंग्स. आपको ऐसे कंफ्यूज करने के लिए पूछेंगे बट आपको पता होना चाहिए कि सर्जरी के तुरंत बाद देयर विल बी ह्यूमेक्यूरिया, इट इज नॉर्मल. सो हमें वो मॉनिटर करते रहना है. मॉनिटर द साइंस फॉर पेरिटोनाइटिस. पेरिटोनाइटिस ना हो जाए वो भी साइंस मॉनिटर करने हैं. अगर वो स्टोमा किया है, एनास्टोमोसिस क्रिएट किया था और उसका लीकेज होगा कहीं पे भी तो सारा यूरिन पेरिटोनियल कैविटी में चला जाएगा. और एक्सटर्नल कुछ भी जाता है कहीं पे भी और तो इट कैन क्रिएट इन्फ्लामेशन, सो उससे पेरिटोनाइटिस हो जाएगा. Monitor for bladder distension following a partial cystectomy. Yes, अगर partial cystectomy करवाई है so आपको ब्लैडर डिस्टेंशन भी मॉनिटर करना होगा. पार्शियल मींस आधा ब्लैडर रिमूव कर दिया है, आधा इज स्टिल देयर. सो अगर यूरिन आउटपुट अच्छे से बाहर नहीं निकल रहा है, अंदर ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, सो देयर विल बी डिस्टेंशन ऑफ ब्लैडर. सो अगर पार्शियल सिस्टेक्टोमी है सो आपको ब्लैडर डिस्टेंशन भी चेक करना होगा. सिस्टेक्टोमी, कंप्लीट सिस्टेक्टोमी होगी तो वहां पर ब्लैडर डिस्टेंशन होगा. Why? Because there is no any bladder, so bladder distension होगा ही नहीं. But अगर partial है, so then you have to check for the bladder distension. Monitor for shock, hemorrhage, thrombophlebitis, and lower extremity lymphedema after radical cystectomy. कौन सा शॉक होगा यहाँ पर भी? सर्जरी है तो हाइपोवोलेमिक शॉक. यस, सो यू हैव टू मॉनिटर फॉर हाइपोवोलेमिक शॉक. हेमरेज है या नहीं, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस ना हो जाए विच इज अगेन अ कॉम्प्लिकेशन, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन. लोअर एक्सट्रीमिटी लिम्फेडिमा भी हमें मॉनिटर करना है. क्यों? आफ्टर रेडिकल सिस्टेक्टोमी. व्हाट इज रेडिकल सिस्टेक्टोमी? न्यू स्टूडेंट्स विल स्पीक. व्हाट इज रेडिकल सिस्टेक्टोमी? आई हैव ऑलरेडी टॉट यू अर्लियर. फ्राइडे ही मैंने बोला था व्हाट इज रेडिकल सिस्टेक्टोमी. Whenever there is a word radical, what does it indicate? Online students, remove everything surrounded by yes, like bladder. specific organ, जो भी organ है उसके आजू बाजू का सब हम निकाल दे रहे हैं. So that is the radical surgery. अगर bladder के आजू बाजू का निकाल रहे हो so it is radical cystectomy. ब्रेस्ट के आजू बाजू का निकाल रहा हो सो रेडिकल मास्टेक्टोमी. आगे उसके वर्ड आगे रेडिकल वर्ड हो तो इट इंडिकेट्स कि आपने ब्लैडर के साथ साथ सब कुछ निकाल दिया है. लिम्फ नोड्स ऑल्सो, लिम्फ नोड्स भी निकाल दिया है. एंड व्हेनेवर यू विल रिमूव द लिम्फ नोड्स उसके जो नियर वन एक्सट्रीमिटी होगी वहां पर लिम्फेडिमा होगा ही. सो यू हैव टू मॉनिटर फॉर लिम्फेडिमा. जो भी एक्सट्रीमिटी है वहां पर लिम्फेडिमा के लिए आपको मॉनिटर करना होगा बिकॉज ऑफ रेडिकल सिस्टेक्टोमी. Monitor the urinary drainage pouch for leaks and check skin integrity. Yes, अगर वो पाउच है वो भी जो भी क्रिएट किया है सो वहां पर कोई लीकेज ना हो. स्किन इंटेग्रिटी भी चेक करनी है बिकॉज यूरिन अगर वहां पर स्टिक होगा सो दे विल क्रिएट इरिटेशन, स्किन इरिटेशन होगा, स्किन पीलिंग होगा. सो हमें वो सब चेक करना है जो हमने ऑलरेडी यूरिनरी स्टोमा केयर में देखा था, वही बॉक्स है सेम. Monitor the pH of urine because highly alkaline or acidic urine can cause the skin irritation and facilitate the crystal formation.
Do not place the dipstick in the stoma. Normal pH is 4 to 6. हमें यूरिन की pH भी मॉनिटर करनी है. अगर यूरिन है वो बहुत ज्यादा अल्कलाइन है या फिर बहुत ज्यादा एसिडिक है, दोनों ही कंडीशन में वो स्किन को इरिटेट करेगी. सो नॉर्मल पीएच कितनी होनी चाहिए यूरिन की? इट शुड बी बिटवीन 4 to 6. ना ज्यादा, 6 से ज्यादा भी नहीं और 4 से कम भी नहीं होनी चाहिए. बिकॉज अगर हाईली अल्कलाइन की वैसी होगी तो देयर माइट बी फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स, स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है. सो आप पीएच कैसे चेक करोगे? स्टोमा पर यूरिन आ रहा है, सो आपने देखा होगा, लिटमस पेपर तो आपने स्कूल में देखा ही होगा, डिपस्टिक बोलते हैं उसको. सो डायरेक्टली आप ऐसे स्टोमा में टच करके चेक कर लोगे यूरिन. हाउ यू विल चेक द पीएच ऑफ यूरिन? Series urine line કરી શકાય. We cannot place the dipstick directly into the stoma because आपको पता है कि वो पेपर जैसा होता है. अगर आप डायरेक्टली स्टोमा में प्लेस करोगे, चिपकाओगे, और अगर वो गीला होके फट जाएगा, सो इट विल क्रिएट द ब्लॉकेज इन द स्टोमा. ब्लॉकेज हो सकता है, स्टोमा में फंस सकता है. इट विल बिकम हार्ड टू रिमूव दैट डिपस्टिक. अगर वो जो लिटमस पेपर है आपने स्टोमा में टच किया और गीला होके वहीं पे ही चिपक गया, सो हाउ यू विल रिमूव दैट? सो नेवर प्लेस द डिपस्टिक डायरेक्टली इनटू द स्टोमा. यूरिन पीएच चेक करने के लिए जो यूरिन बाहर आ रहा है, सो टेक द सैंपल एंड सैंपल में से आप डिपस्टिक करके यूरिन की पीएच चेक कर सकते हो, नॉट डायरेक्टली इन द स्टोमा. अंडरस्टूड? Yes. Okay. Instruct the client regarding the potential for UTI or development of calculi. पेशेंट को आपको समझाना होगा कि आपको अभी रिस्क ज्यादा है यूटीआई का भी और कैलक्यूलाई का भी. सो उसके पोटेंशियल्स आपको पेशेंट को समझाने होंगे. बिकॉज स्टोमा है, यूरिन अगर अंदर रह गया है, सो देयर माइट बी प्रोडक्शन ऑफ कैलक्यूलाई आल्सो. सो आपको पेशेंट को समझाना होगा. इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू असेस द स्किन फॉर इरिटेशन, मॉनिटर द यूरिनरी ड्रेनेज पाउच एंड रिपोर्ट एनी लीकेज. पेशेंट को आपको समझाना होगा कि आपको स्किन रेगुलरली खुद से असेस करनी है. देयर माइट नो एनी इरिटेशन होना नहीं चाहिए. यूरिनरी ड्रेनेज पाउच आपको रेगुलरली मॉनिटर करना है. अगर कोई भी लीकेज आपको दिखता है, लगता है कि देयर इज अ लीकेज, यू हैव टू immediately inform the PHCP. You have to report it. Encourage the client to express feelings about changes in the body image, embarrassments, and sexual dysfunction. The nurse needs to assist the client to acknowledge the change so that the adaptation can begin. Yes. अभी पेशेंट की जो भी फीलिंग्स है, वी हैव टू एनकरेज कि आप जो भी आपको फील हो रहा है, प्लीज टेल मी. बिकॉज पेशेंट को कैसी फीलिंग्स होगी? अभी उसकी बॉडी इमेज चेंज हो गया है, लाइक एक स्टोमा बाहर है, एक पाउच बाहर है, सो पेशेंट को बॉडी इमेज चेंजेस फील होगा, एम्बेरसमेंट फील होगा, सेक्सुअल डिसफंक्शन रिलेटेड फीलिंग्स होगी. सो यू कैन एनकरेज द पेशेंट की सारी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करें. एंड इट इज अवर ड्यूटी कि जो भी अभी चेंज है उससे पेशेंट को एडेप्ट होना है. अंडरस्टूड? ओके. नेक्स्ट इज रिस्टोरेटिव केयर और प्रमोटिंग द यूरिनरी एलिमिनेशन. हमने वो सब पढ़ लिया, यूरिनरी डाइवर्जन्स, सारे यूरिनरी ऑल्ट्रेशंस पढ़ लिए, उसमें डाइवर्जन पढ़ा, दैट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर. तो प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव पढ़ लिया. अभी कोई भी पेशेंट हो जिसको भी यूरिनरी ऑल्ट्रेशन हुआ है, यूरिनरी प्रॉब्लम हुआ है, वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द स्टोमा, जो डाइवर्जन थे उसकी नहीं, कोई भी प्रॉब्लम हो, वेदर इट इज ऑब्स्ट्रक्शन, इनकॉन्टिनेंस, कोई भी प्रॉब्लम हो, जो भी हमने ऑल्ट्रेशंस पढ़े उसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो, सो हाउ यू विल रिस्टोर. अभी उसको नॉर्मल कैसे करना है? हमें उसका यूरिनरी एलिमिनेशन प्रमोट करना है. सो कैसे प्रमोट करोगे? लेट्स स्टडी अबाउट दैट. सो फर्स्ट इज बाय फ्लूइड इनटेक. फ्लूइड इनटेक से हम यूरिनरी प्रॉब्लम्स को, अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो तो हम वो मैनेज कर सकते हैं. सो लेट्स स्टडी अबाउट फ्लूइड इनटेक. In the absence of heart disease and with the normal renal function, approximately 2 liter to 2.3 liter fluid per day is optimal. अगर कोई पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, उसका रीनल फंक्शन भी अच्छा है, लीवर प्रॉब्लम, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि जिसमें फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड होने के चांसेस हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है पेशेंट को. सो नॉर्मली पेशेंट 2.2 से 2.3 लीटर तो रिक्वायरमेंट है, इट इज ऑप्टिमल लेवल. उससे ज्यादा कर सकता है, अप टू 3 लीटर पेशेंट कैन कंज्यूम, बट इतना तो रिक्वायर्ड होगा ही, इट इज ऑप्टिमल. Adequate intake assist with eliminating particles that collect in the urinary tract. अगर पेशेंट एडिक्वेट फ्लूइड, अच्छे से पानी पीगा, एडिक्वेट इंटेक करेगा पानी का, सो उससे जो भी पार्टिकल्स जो जमा रहते हैं वो सब निकल जाएंगे यूरिनरी ट्रैक्ट में. जो भी
यूरिनरी स्ट्रेसेस हो जाता है वो सब निकल जाएगा। सेटिंग स्केड्यूल्स टू कंज्यूम फ्लूइड्स में बी हेल्पफुल। और आप ऐसे स्केड्यूल्स बना सकते हो, पेशेंट को बोल सकते हो कि एवरी हाफ एन आवर यू हैव टू कंज्यूम दिस मच अमाउंट ऑफ वाटर, ऐसे स्केड्यूल कर दोगे, बिकॉज पेशेंट भूल जाता है या फिर ड्यू टू एनी रीजन पेशेंट कैन नॉट रिमेम्बर। तो आप स्केड्यूल्स बना सकते हो कि वो आपको हेल्प करेगा। एंड फ्लूइड शुड बी टेकन इन फ्रीक्वेंटली इन स्मॉल वॉल्यूम्स। यस, ऐसा नहीं कि एक बार पेशेंट ने पूरा 1 लीटर पी लिया एंड देन 6 घंटे तक पानी नहीं पिया। इट शुड नॉट बी डन लाइक दैट। हर थोड़े टाइम में थोड़ा थोड़ा पानी पीता रहना, एक ही बार में पूरा पानी आप नहीं ले सकते। नॉक्चुरिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय अवॉइडिंग फ्लूइड इनटेक 2 hours प्रायर टू स्लीप। और नॉक्चुरिया हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो सोने से 2 घंटे पहले पानी पीना बंद कर देना है। सो नॉक्चुरिया नहीं होगा, रात में यूरिन प्रोडक्शन नहीं होगा। दिन में जितना पानी पीना है वो पेशेंट पी सकता है। आफ्टर नाइट टाइम सोने से पहले पेशेंट को पानी पीना बंद करना है। So this is how you can restore the normal urinary elimination. Next is elimination habit. Elimination habit से भी आप restorative care दे सकते हो, अच्छे से normalize कर सकते हो। कैसे? Adhere to the normal voiding routine as much as possible. जो भी हमारा normal voiding routine है, पहले तो उस पर stick होना है, जितना possible हो सके हमें normally सब करना है। Ensure privacy and ask the visitors to leave the room to avoid the client embarrassment and promote elimination. Yes, हमें पेशेंट को जब भी वो एलिमिनेट करने जा रहा हो या बेड पर कर रहा हो, कोई भी हो, सो हमें पेशेंट को प्राइवेसी देनी है। जो भी विजिटर्स है हमें बोलना है कि प्लीज लीव द क्लाइंट अलोन, कि उसको एम्बेरसमेंट फील ना हो और वो अच्छे से वॉइड कर सके। यूज रनिंग वाटर टू हेल्प प्रमोट यूरिनेशन एंड टू कवर द यूरिनेशन साउंड। यस, अगर ये कब हो सकता है? जब पेशेंट को यूरिनरी रिटेंशन हो रहा हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो आप रनिंग वाटर का भी साउंड यूज कर सकते हो। और क्यों यूज कर सकते हो? तो यूरिनेशन प्रमोट करने के लिए भी और यूरिनेशन का साउंड कवर करने के लिए भी। जब पेशेंट यूरिन कर रहा हो तो पेशेंट को ऐसा हो कि साउंड आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तब भी आप यूज कर सकते हो। तो यू कैन यूज एनी मेथड और एनी टेक्निक। assess toileting needs frequently and offer assistance with toileting. Yes, आपको toileting needs frequently assess करनी होगी। like हर 1 घंटे में आपको पेशेंट से पूछना होगा कि want to go to the urine, वॉशरूम जाना है आपको। अगर पेशेंट यस बोलता है तो उसको एक असिस्टेंस, एक हेल्प के लिए भेजना होगा। यू कैन सेंड द यूएपी कि जो उसको टॉयलेटिंग में हेल्प कर सके, असिस्ट कर सके। नेक्स्ट इज कंप्लीट एम्प्टिंग। कंप्लीट एम्प्टी होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो अवर इंपॉर्टेंट रोल, कि उससे नॉर्मल यूरिनरी एलिमिनेशन हो सके। तो स्मॉल वॉल्यूम ऑफ यूरिन मे रिमेन इन ब्लैडर आफ्टर यूरिनेशन। जब भी पेशेंट यूरिन करेगा तो उसके बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन माइट बी चांस कि वो अंदर ही रह जाए। सो हाई रेसिडुअल वॉल्यूम इंक्रीजेस द रिस्क फॉर इनकॉन्टिनेंस एंड इन्फेक्शन। अगर ज्यादा वॉल्यूम अंदर रह जाता है, थोड़ा रह जाता है, दैट इज फाइन, शायद रह सकता है पेशेंट की एज की वजह से या पेशेंट को प्रॉब्लम है इसलिए। बट अगर ज्यादा रेसिडुअल वॉल्यूम अंदर रह रहा है ब्लैडर में, तो इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ इनकॉन्टिनेंस। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी अंदर ज्यादा था, थोड़ा भी प्रोड्यूस हो जाएगा तो पेशेंट को अर्ज फील हो जाएगी। एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू इन्फेक्शन। अगर यूरिन अंदर रहेगा सो इट कैन ऑल्सो क्रिएट्स which UTI bladder infection, cystitis हो सकता है। A normal voiding position is helpful in ensuring the complete bladder emptying. नॉर्मल पोजीशन में पेशेंट वॉइड करेगा, सो उससे पूरा ब्लैडर एम्प्टी हो ही जाएगा। सो पीपल विथ वजाइना, फीमेल्स की बात हो रही है, सो फीमेल वॉइड मोर इजिली इन सिटिंग पोजीशन। फीमेल्स के लिए नॉर्मल पोजीशन क्या है? दैट इज सिटिंग पोजीशन, while male do so more easily in standing position. मेल के लिए नॉर्मल पोजीशन स्टैंडिंग है। सो अगर आप नॉर्मल पोजीशन में वॉइड करवाओगे सो कंप्लीटली ब्लैडर एम्प्टी हो सकता है। Immobilization may inhibit normal voiding because of the need to use a urinal or bedpan. Ensure privacy for voiding. अगर पेशेंट इमोबिलाइज है सो उससे कंप्लीटली एम्प्टिंग होना चाहिए, वो नहीं होगा बिकॉज पेशेंट नॉर्मल पोजीशन में वॉइड नहीं कर रहा है, सोते सोते वॉइड कर रहा है, तो देयर माइट बी चांसेस कि अच्छे से ब्लैडर एम्प्टी ना हो। और जब भी आप ऐसे इमोबिलाइज है तो यू हैव टू मेक द पेशेंट वॉइड यूजिंग यूरिनल और बेडपान से ही आप करवा सकते हो। सो जब भी आप उससे करवाते हो तो आपको प्राइवेसी मेंटेन करनी है। Attempting a second void after the urine flow stops assist with complete emptying. This is also called as double voiding. हाँ, एक बार पेशेंट ने वॉइड कर दिया,
फिर से आपको सेकेंड वॉइड करने के लिए एंकरेज करना है कि फिर से यूरिन करो. सो दिस इज कॉल्ड एज डबल वॉइडिंग. क्यों? बिकॉज उससे कंप्लीट एम्प्टी हो गया. एक बार यूरिन करके स्टॉप हो गया, फिर भी पेशेंट को ऐसे बोलना है कि अभी भी आएगा, थोड़ा फिर से करो. सो दैट इज कॉल्ड एज डबल वॉइडिंग. Assess post void residual with a bladder scanner to determine the bladder empty. पोस्ट void residual भी हमें चेक करना है जब भी पेशेंट यूरिन कर लेता है. सो यू कैन यूज टू टेक्निक्स. फर्स्ट इज yes, so USG, that is called as bladder scanning or bladder scanner or catheter. दोनों आप यूज कर सकते हो टू चेक वेदर देयर इज हाउ मच रेसिडुअल इज देयर. कितना यूरिन अभी बाकी है. थोड़ा है तो इट इज फाइन. अगर ज्यादा अंदर रह जाता है तो आपको पता चलेगा कि पेशेंट कंप्लीटली एम्प्टी नहीं कर पा रहा है ब्लैडर. तो दिस आर द टेक्निक्स कि जिससे आप कंप्लीट एम्प्टिंग करवा सकते हो पेशेंट का, एंड यू कैन नॉर्मलाइज द यूरिनरी एलिमिनेशन. उसका रिस्टोरेटिव केयर आप दे सकते हो. नेक्स्ट इज इन्फेक्शन प्रिवेंशन. आपको इन्फेक्शन भी प्रिवेंट करना है. हाउ? सो प्रमोटिंग फ्लूइड इनटेक, ensuring good perineal hygiene practice, and adhering to regular urination intervals helps to prevent the infection of urinary tract. इन्फेक्शन कैसे प्रिवेंट करोगे? सो फ्लूइड इनटेक अच्छा होना चाहिए. आपको पता होगा कि जब भी यूटीआई होता है तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि कंज्यूम एज मच फ्लूइड एज यू कैन. सो फ्लूइड इनटेक प्रमोट करना है. पेरिनियल हाइजीन अच्छे से मेंटेन हो रही हो, वैसी प्रैक्टिसेस अच्छे से फॉलो करे पेशेंट, वो हमें ध्यान रखना है. एंड वी हैव टू एनकरेज कि पेशेंट जो यूरिनेशन इंटरवल है उस पर स्टिक रहे. एवरी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पेशेंट को अवॉइड करना ही है. अगर पेशेंट होल्ड करके रखेगा यूरिन, सो इट कैन लीड्स टू यूटीआई. Wearing cotton underwear and avoiding scented products and tight clothing are recommended. पेशेंट को हमें बोलना है कि कॉटन अंडरवियर पहनना है, सेंटेड प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने हैं इन द पेरिनियम एरिया, और टाइट क्लोथिंग भी नहीं पहनने हैं. वाइपिंग फ्रॉम फ्रंट टू बैक इज ऑल्सो गुड हाइजीन प्रैक्टिस फॉर पीपल विथ वजाइना. फीमेल्स के लिए जब भी यूरिन करते हो, यूरिन करने के बाद फीमेल्स शुड वाइप. जो भी टिश्यू होता है उससे वाइप करना चाहिए फ्रॉम फ्रंट टू बैक. दैट इज ऑल्सो गुड हाइजीन प्रैक्टिस फॉर फीमेल्स. Okay, let's take a short break, then we will start with the lifestyle changes. Lifestyle modification कैसे करनी है पेशेंट को to promote the normal urinary elimination. Online students, please come back from break. Should we start now? Yes. Yes. Okay, so let's study about lifestyle changes. How changing certain lifestyle habits you can promote healthy urinary elimination. So first, avoid foods and drink that causes bladder irritation, such as coffee, tea, soft drinks, and chocolate, and avoid smoking. हमें पेशेंट को बोलना होगा कि ऐसे कोई भी फूड ड्रिंक्स आपको अवॉइड करना है कि जिसकी वजह से ब्लैडर इरिटेट हो सकता है, एंड इट कैन लीड टू ओवर स्टिमुलेशन ऑफ द ब्लैडर. ब्लैडर ओवर रिएक्टिव हो जाएगा, सो इट कैन लीड टू ओवर रिएक्टिव ब्लैडर को हम क्या बोलते हैं, उससे क्या होता है? विच टाइप ऑफ इंकॉन्टिनेंस? स्ट्रेस इंकॉन्टिनेंस. No. Urge incontinence. अर्ज इंकॉन्टिनेंस, नॉट स्ट्रेस. सो आपको पेशेंट को बोलना है कि ये सब अवॉइड करना है. कॉफी, टी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, चॉकलेट, एंड अवॉइड स्मोकिंग. टेक measures to avoid constipation or urinary tract infections, including adequate hydration, having good voiding habits, and perineal hygiene. आपको ऐसे भी मेजर्स लेने हैं, पेशेंट को ऐसे बोलना है कि जिससे कॉन्स्टिपेशन आप एलिमिनेट कर सको. कॉन्स्टिपेशन एलिमिनेट करने के लिए बेस्ट की क्या है? फ्लूइड एंड हाई फाइबर फूड. फ्लूइड जितना ज्यादा लेगा पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा. अगर कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा तो ब्लैडर में फोर्स पड़ेगा ड्यू टू द बॉवल. बॉवल फुल है, सो उससे ब्लैडर पर फोर्स हो सकता है, पेशेंट यूरिन नहीं कर सकता अच्छे से. तो कॉन्स्टिपेशन भी अवॉइड करना है, यूटीआई भी अवॉइड करना है. कैसे अवॉइड करोगे? सो बाय मेंटेनिंग एडिक्वेट हाइड्रेशन. गुड वॉइडिंग हैबिट्स रखनी है, फ्रीक्वेंटली अच्छे से वॉइड करना है, पेरिनियल हाइजीन मेंटेन करनी है. Elevate the feet in the afternoon for few hours to promote the daytime voiding, and eliminate nighttime voiding, particularly for those who have edema in the lower extremities. Yes, अगर
पेशेंट को ऐसे कोई प्रॉब्लम होगा किडनीज का और अच्छे से एलिमिनेट नहीं कर सकता, तो उनमें ऐसे लेग एडिमा देखने को मिलता है। जो भी पेशेंट की किडनीज डैमेज हो गई होती है, फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड होता है, तो उनमें एडिमा होता है एक्सट्रीमिटीज में। सो आप पेशेंट को बोल सकते हो कि जब भी डे टाइम वॉइडिंग कर रहे हो आप, तो आप आफ्टरनून में फीट एलिवेट करके रख सकते हो कि उससे क्या होगा, सारा फ्लूइड वापस आ जाएगा और किडनीज का फंक्शन भी इम्प्रूव हो सकता है, वो जो भी यूरिन प्रोडक्शन है वो एलिमिनेट हो सकता है। और नाइट टाइम वॉइडिंग भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे? बिकॉज आपने डे में ही वॉइड कर दिया था। और पेशेंट को ये किसके लिए वर्क करेगा? जिसमें लोअर एक्सट्रीमिटीज में एडिमा रहता है, ऐसे पेशेंट को जिसकी किडनीज हार्ट कोई भी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। सो उस पेशेंट को आप बोल सकते हो कि आप जब भी फ्री हो जाओ तो आप ऐसे लेग एलिवेट करके बैठ सकते हो। वीनस रिटर्न प्रमोट होगा, वीनस रिटर्न प्रमोट होगा तो सब अच्छे से फंक्शन हो सकता है एंड यूरिन कैन बी एलिमिनेटेड ड्यूरिंग डे, सो आपको रात में ना जाना पड़े। नेक्स्ट इज पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस। ये कौन से पेशेंट में काम लगेगी? पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस यूरिनरी रिटेंशन वाले पेशेंट में। Incontinence. विच टाइप ऑफ इनकॉन्टिनेंस? Stress incontinence. स्ट्रेस इंकॉन्टिनेंस, यस। तो जब भी पेशेंट को इंकॉन्टिनेंस होगा तो उसमें आप पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करवा सकते हो। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस हेल्प्स क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस, स्पेसिफिकली स्ट्रेस वाला। सो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज से पेशेंट को जो यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस है उसमें हेल्प मिलेगी, उससे उसके मसल्स स्ट्रेंथन होंगे, अच्छे होंगे। इट इन्वॉल्व्स द कॉन्ट्रैक्टिंग पेल्विक फ्लोर मसल्स यूजिंग structured exercise program, also referred as a Kegel exercise. आपने पढ़ा होगा। We will also study Kegel exercises when we are studying OBG. आपने फाइनल ईयर में पढ़ा होगा। फीमेल्स को हम कीगल एक्सरसाइज करवाते हैं। कीगल एक्सरसाइज से जो पेल्विक मसल्स होते हैं, पेल्विक फ्लोर के मसल्स, वो स्ट्रेंथन होते हैं। सो उसको वो करवा के हम पेशेंट का जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है उसको हम ठीक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। Pelvic physical therapy may be an option for clients requiring rehabilitation for pelvic floor muscles. जो pelvic physical therapy, फिजियोथेरापी इन शॉर्ट, बट फॉर द pelvic muscles, सो वो भी हम करवा सकते हैं। कौन से क्लाइंट को? जो pelvic floor muscles का रिहेबिलिटेशन कर रहे हो। रिहेबिलिटेशन मीन्स उनके मसल्स बहुत वीक हो गए हैं, नाउ दे आर इन अ रिहेबिलिटेशन पीरियड। रिहेबिलिटेशन पीरियड में उनकी लाइफस्टाइल ऐसे एक्सरसाइज से और सब कुछ मॉनिटर मॉडिफाई करते हैं हम। सो उसको फिजियोथेरापी की जरूरत पड़ेगी पेशेंट की पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज में। नेक्स्ट इज ब्लैडर ट्रेनिंग। ब्लैडर ट्रेनिंग, आप ब्लैडर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर सकते हो पेशेंट को। कैसे? सो ब्लैडर ट्रेनिंग हेल्प्स द क्लाइंट टू कंट्रोल द यूरिनरी सिम्टम्स सच एज अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी। पेशेंट को कब अवॉइड करना है, कब होल्ड करना है, सो दैट इज कॉल्ड एज ब्लैडर ट्रेनिंग। मेक श्योर pelvic floor exercises and bladder training both are different. pelvic floor exercise में आप एक्सरसाइज करके ब्लैडर के और स्पिंचर के मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाते हो। ब्लैडर ट्रेनिंग में होल्डिंग एंड वॉइडिंग का आप ट्रेनिंग देते हो कि कब आपको वॉइड करना है, कब आपको होल्ड करना है। फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो आप उसको होल्ड करके रख सकते हो, एंड देयर इज अ अर्जेंसी कि नहीं अभी आप नहीं रोक सकते, देन यू हैव टू गो फॉर द वॉइडिंग। सो दैट इज अ ब्लैडर ट्रेनिंग। Using a journaling method, a schedule is implemented around the times when the client struggles with the leaking or incontinence period. So एक journaling method use कर सकते हो। journaling method means पेशेंट को पता चल जाएगा कि इतनी देर बाद में पेशेंट होल्ड नहीं कर सकता यूरिन। सो पेशेंट को उतनी देर तक होल्ड करना है, देन बिफोर द पेशेंट फील्स द अर्ज फील हो उससे पहले वॉइड कर देना है। सो देयर विल बी नो इनकॉन्टिनेंस। अगर अर्ज फील होगी फिर पेशेंट जाएगा वॉशरूम तक, तो देयर माइट बी चांसेस ऑफ लीकेज और इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा, लीकिंग हो जाएगा। सो वो प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपको ये ब्लैडर ट्रेनिंग करनी होगी। ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूरिन करने के लिए नहीं जाना है, यू हैव टू होल्ड द यूरिन, बट आपको आइडिया आ जाएगा कि इतने टाइम में मुझे अर्जेंसी फील हो जाती है, तो अर्जेंसी फील हो उससे पहले यूरिन कर दो। सो दिस इज हाउ यू हैव टू give the bladder training to the patient. Inhibition of the urge to void is encouraged by using slow deep breathing and pelvic floor contractions in a quick session. Once the urge subsides, then the client is instructed to go to the bathroom. कैसे करना है? पहले तो पेशेंट को अर्ज फील हो रही है, सो पहले स्लोली स्टार्टिंग सेशंस में इनिशियल क्विक सेशंस होते हैं उसमें क्या करना है, पेशेंट को स्लोली ऐसे डीप ब्रीथिंग करना है, पेल्विक फ्लोर का कॉन्ट्रैक्शन करना है। सो अर्ज थोड़ी सी सबसाइड हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा
कि पेशेंट बाथरूम में जाते जाते ही यूरिन कर देगा, ऐसा नहीं होगा, अर्ज थोड़ी सबसाइड हो जाएगी, देन पेशेंट कैन गो फॉर द यूरिनेशन टू द बाथरूम, फिर बाथरूम तक जाएगा। सो ब्लैडर की ट्रेनिंग करवाई गई। इंटेक्ट कॉग्निशन इज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट दिस स्ट्रेटजी। यस, पेशेंट का कॉग्निशन भी अच्छा होना चाहिए। पेशेंट उसका कॉग्निशन अच्छा नहीं है, पेशेंट कॉग्निटिव उसकी इम्पेयरमेंट हो गई है, देयर इज इम्पेयरमेंट इन द कॉग्निशन, सो पेशेंट ये स्ट्रेटजी यूज नहीं कर पाएगा। सो टू यूज दिस स्ट्रेटजी देयर मस्ट बी इंटेक्ट कॉग्निशन। नेक्स्ट इज टॉयलेटिंग स्केड्यूल। टॉयलेटिंग स्केड्यूल आप कर सकते हो, हाउ? सो टाइम्ड और स्केड्यूल टॉयलेटिंग इज वेरी हेल्पफुल इन प्रमोटिंग द कॉन्टिनेंस। ये हम छोटे बच्चों में भी यूज करते हैं, बिकॉज छोटे बच्चे को पता नहीं है कि हाउ टू गो फॉर द यूरिनेशन, वो अंदर बेड वेटिंग ही कर देते हैं, कपड़े गीले कर देते हैं, तो हम उसमें टॉयलेटिंग स्केड्यूल करते हैं। हर 2 घंटे में पेशेंट को, बच्चे को बोलेंगे कि गो फॉर द वॉशरूम, यूरिन आई है या नहीं आई है, हम पेशेंट को और चाइल्ड को वॉशरूम में ले जाकर ब्लैडर एम्प्टी करवा देते हैं। सो देयर इज अ स्केड्यूल। सो स्केड्यूल शुड बी सेट एवरी 2 to 3 hours और एट अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ डे। नॉर्मली हम हर 2-3 घंटे में पेशेंट को बोलेंगे कि गो फॉर यूरिनेशन, सो उससे प्रॉपरली देयर विल बी नो एनी फ्रीक्वेंसी, नो एनी अर्जेंसी, सब नॉर्मल हो जाएगा। और कोई स्पेसिफिक टाइम हो कि पेशेंट को हर आधे घंटे में यूरिन आ जाता है, तो हम हर आधा घंटा रखेंगे, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट हम टॉयलेटिंग स्केड्यूल सेट करेंगे। दिस मेथड इज हेल्पफुल फॉर द क्लाइंट विद कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। जो कॉग्निटिव जिनका इम्पेयरमेंट हो गया उसमें हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज वो पेशेंट को पता नहीं चल देगा कि कब मुझे वॉइड करने जाना है, कब मैं होल्ड करूंगी। पेशेंट मेंटली स्टेबल नहीं है, तो ऐसे पेशेंट में आपको ऑर्डर करना होगा हर 2 घंटे में आपको पेशेंट को वॉशरूम तक ले जाना है एंड यूरिन पास करवाना है। It requires consistent caregiving for client who are functionally unable to adhere to the schedule. इस ये जो सारे पेशेंट है वो अच्छे नहीं है, दे आर नॉट मेंटली स्टेबल, सो उसमें आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। डेली आपको ये ही प्रैक्टिस करना होगा, हर 2 घंटे में पेशेंट को वॉशरूम के लिए ले जाना है, बिकॉज पेशेंट खुद से स्टिक नहीं रह पाएगा, पेशेंट इज नॉट हेल्दी। सो पेशेंट कॉग्निटिवली मेंटली हेल्दी नहीं है पेशेंट, सो वो खुद से स्टिक नहीं रह पाएगा। यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स, आपको पेशेंट को करवाना है, यू हैव टू स्टिक टू दिस स्केड्यूल, पेशेंट नहीं रहेगा। Next is catheterization. So it may be necessary for the clients who are experiencing chronic retention or inability to fully empty the bladder. कैथेटराइजेशन कौन से पेशेंट में करोगे? सो ऐसे पेशेंट जिनको क्रोनिक रिटेंशन होता है। क्रोनिक रिटेंशन मीन्स बहुत टाइम से रिटेन रहता है और ज्यादा रिटेन रहता है, हाई अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स रेसिडुअल यूरिन रेसिडुअल ब्लैडर में रहता है। प्रिंसिपल्स ऑफ एसेप्सिस नीड्स टू बी फॉलोड फॉर कैथेटराइजेशन। जब भी कैथेटराइजेशन आएगा, एसेप्सिस आपको खुद ध्यान में रखना है, आपको कंप्लीटली स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक ही यूज करके कैथेटराइज करना है। Draining 400 ml of urine with each catheterization is an indicator of good voiding schedule using this method. हर बार जितनी बार आप कैथेटराइज करते हो तो उतनी बार 400 ml आप यूरिन निकालते हो, जो नॉर्मल ब्लैडर कैपेसिटी है वो। सो इट इंडिकेट्स कि अच्छे से वॉइड हो रहा है, ये स्ट्रेटेजी अच्छे से काम कर रही है। पेशेंट को क्रोनिक रिटेंशन है, आपने कैथेटराइज किया, यूरिन निकल गया और 400 ml निकला, उसका मतलब कि अच्छे से वॉइड हो गया है। देन अगेन फिर से पेशेंट को थोड़ी मतलब नॉर्मली रखा है, फिर से कैथेटर डाला, फिर से यूरिन निकाला। सो दिस इज अ गुड स्ट्रेटजी फॉर सच पेशेंट्स। डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, वो पेशेंट को कितनी देर में यूरिन ब्लैडर फुल हो जाता है। अगर पेशेंट ने ज्यादा फ्लूइड कंज्यूम किया है, so every 2 to 3 hours में पेशेंट का ब्लैडर फुल हो जाएगा। पेशेंट फ्लूइड कम ले रहा है, सो इट कैन टेक अप टू 4 to 6 hours। सो डिपेंडिंग ऑन द नीड आपको कैथेटराइज करना होगा। एनी डाउट्स इन दिस? Yes, PHCP's prescription will also required in catheterization. Ma'am, one question. Yes. मैम कैथेटर पेशेंट्स में जो यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन अगर लेना है तो मैम डायरेक्ट मतलब बैग से ले सकते हैं? No, we cannot take from the bag. बैग से नहीं लेना है, यू हैव टू डिस्कनेक्ट द कैथेटर एंड बैग, एंड जब भी फ्रेश सैंपल आए तभी लेना है। अगर पेशेंट का जस्ट आपने यूरिनरी कैथेटर किया है, बैग इज क्लीन, पहला ही सैंपल आया है, तो आप ले सकते हो, बट बैग ऑलरेडी वहां पर थी, यूरिन कब से वहां पर था, तो बैग में से नहीं लेना है। आइडियली यू हैव टू गो फ्रॉम द फ्रेश सैंपलिंग, फ्रेश सैंपल ही लेना है, बैग को और कैथेटर को डिस्कनेक्ट करना है और कैथेटर में से डायरेक्ट ही लेना है।
दिस इज द आइडियल मेथड। वो कल्चर के लिए यूज कर सकते, तो यूरिन रूटीन के लिए भी सेम सेम प्रोसेस। हाँ हाँ, अगर कल्चर आप वो बैग वाला यूरिन लोगे तो उसमें देयर माइट बी चांसेस कि बैक्टीरिया ज्यादा होंगे। तो यूरिन रूटीन माइक्रो के लिए और कल्चर के लिए, दोनों के लिए बैग वाला यूरिन नहीं लेना है, हमें फ्रेश सैंपल ही लेना है। बट इन सर्टेन सिचुएशंस लाइक पेशेंट को आपने अभी कैथेटर किया एंड कैथेटर करते वक्त यूरिन आया ही नहीं था, ब्लैडर एम्प्टी था, सो जैसे ही फर्स्ट यूरिन आता है बैग में तुरंत ही आप सैंपल ले सकते हो बिकॉज इट इज द फ्रेश यूरिन। अभी आपने कैथेटर किया है और पहला ही यूरिन आया है। बट पेशेंट को ऑलरेडी कैथेटर लगाया हुआ था एंड डॉक्टर ने 1-2 दिन बाद बोला कि वी हैव टू टेक द सैंपल, तो आप बैग वाला नहीं ले सकते, यू हैव टू ऑलवेज चेक, गो फॉर द फ्रेश सैंपल। ओके मैम, थैंक यू मैम। या ओके, सो एनी डाउट टिल दिस? अब यूरिनरी पोर्शन हमारा खत्म हो गया, हमने फर्स्ट उसका असेसमेंट देख लिया, कंसिडरेशंस देख ली, ऑल्ट्रेशंस देखे सारे अलग अलग कि कौन से यूरिनरी ऑल्ट्रेशंस थे, देन उसमें भी स्पेसिफिक यूरिनरी डाइवर्जन के प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव केयर देखी, और कैसे नॉर्मल यूरिनरी एलिमिनेशन हम रिस्टोर कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, वो हमने देखा। सो दैट इज ऑल अबाउट द यूरिनरी पोर्शन, यूरिनरी एलिमिनेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बॉवेल एलिमिनेशन। जैसा ही यूरिन का पढ़ा, अभी हम बॉवेल के बारे में पढ़ेंगे, उसका असेसमेंट, उसके सारे ऑल्ट्रेशंस, उसका नॉर्मल रिस्टोरेटिव कैसे करोगे, बॉवेल में भी स्टोमा होता है तो उसकी प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव केयर, वो सब हमें पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द बॉवेल एलिमिनेशन। तो फर्स्ट इज ऑलवेज असेसमेंट। पहले आपको असेसमेंट करना होगा, डिपेंडिंग ऑन सर्टेन फैक्टर्स देयर माइट बी चेंजेस इन द बॉवेल एलिमिनेशन, एज, डाइट हैबिट कैसी है, उस पर बॉवेल पैटर्न सबकी अलग अलग होगी। सो लेट्स स्टडी अबाउट बॉवेल असेसमेंट। इन दैट फर्स्ट इज एज। So infants have more rapid peristalsis and a smaller stomach capacity, while older adults have difficulty in chewing and swallowing and may experience decreased peristalsis. So depending on the age, there will be decrease or increased peristalsis. Age is a factor which can create the alteration in bowel elimination. So इन्फेंट्स होते हैं उनमें स्टमक कैपेसिटी भी कम होती है और उसमें आपको रैपिड पेरिस्टाल्सिस देखने को मिलेगा, तो स्टमक जल्दी एम्प्टी हो जाता है। और अगर आप दूसरी साइड देखिए ओल्डर एडल्ट, तो उनमें च्यूइंग डिफिकल्टी होती है, स्वेलोइंग डिफिकल्टी होती है, मसल वीकनेस हो जाते हैं, तो उनमें पेरिस्टाल्सिस डिक्रीज हो जाती है। Perineal muscle tone and the anal sphincter weakens with the aging, which can lead to bowel incontinence. जैसे जैसे एज होगी मसल्स वीक हो जाएंगे। सो जो पेरिनियल जो एनल के मसल्स होते हैं, वो जो स्पिंचर होता है, वी नो कि एनल स्पिंचर होता है, सो वो सब लूज हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे जैसे जैसे एज होती है, तो उसकी वजह से बॉवेल इनकॉन्टिनेंस होगा। पेशेंट जब तक वॉशरूम के लिए जाता है तब तक स्टूल है वो लीक हो जाता है, पेशेंट कैन नॉट कंट्रोल द स्टूल, उसको तुरंत जाना ही पड़ेगा, सो बॉवेल इनकॉन्टिनेंस भी हो सकता है। नेक्स्ट फैक्टर इज डायट्री एंड पर्सनल हैबिट्स। अगर एक पेशेंट की डायट्री हैबिट ये है तो पेशेंट की बॉवेल एलिमिनेशन पैटर्न अलग होगी, सो इट कैन ऑल्सो ऑल्टर द बॉवेल एलिमिनेशन। फाइबर प्रोवाइड्स बल्क फॉर फीकल मैटर। जो फाइबर है वो फीकल मैटर में बल्क प्रोवाइड करता है, फीसिस को, स्टूल को बढ़ाता है, उसमें बल्क ऐड करता है। Gas forming food such as cabbage, beans, and broccoli can cause bowel distension and increase the motility. अगर पेशेंट गैस फॉर्मिंग फूड खाता है लाइक कैबेज, बीन्स एंड ब्रोकली, तो उससे क्या होगा, गैस की वजह से डिस्टेंशन, बॉवेल डिस्टेंशन हो सकता है एंड मोटिलिटी भी इंक्रीज हो सकती है। और वो मोटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो उसमें कंटिन्यूअसली फ्रीक्वेंटली गैस ही पास होता रहेगा, पेशेंट फ्रीक्वेंटली गैस पास करेगा। Whole grains and fresh fruits and vegetables helps promote peristalsis. पेशेंट होल ग्रेन्स लेगा, फ्रेश फ्रूट्स लेगा, वेजिटेबल्स लेगा, तो उसमें फाइबर ज्यादा होगा एंड वो पेरिस्टाल्सिस प्रमोट करेगा। Adequate fluid intake is also important in promoting the bowel elimination. हमें पता है कि जितना अच्छा फ्लूइड लेगा पेशेंट उतना अच्छा बॉवेल एलिमिनेशन होगा। There will be any low chances, there will be such a low chances of constipation. So fluid intake is also important part. Reduced fluid intake and fiber can lead to hard stool and subsequently constipation. अगर कोई पेशेंट ऐसा है कि फ्लूइड भी कम पी रहा है, फाइबर रिच भी डाइट नहीं ले रहा है, तो उसकी वजह से हार्ड स्टूल्स बनेंगे एंड देयर माइट बी कॉजेस ऑफ कॉन्स्टिपेशन, वो कॉन्स्टिपेशन कर सकता है, इट लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन। Determining the best time for defecation based on the personal schedule helps to promote the regular bowel elimination. Yes.
हर पर्सन का बेस्ट टाइम सेम नहीं होता डेफिकेशन का, हर पर्सन को अलग अलग टाइम पे डेफिकेशन होता है। तो जो भी उसके पर्सनल स्केड्यूल्स है, सम पीपल थिंक कि अर्ली मॉर्निंग जाते हैं, सम पीपल आफ्टर ब्रेकफास्ट जाएंगे, इन आफ्टरनून, उनका जो भी पर्सनल स्केड्यूल है अकॉर्डिंग टू दैट वो डेफिकेशन करेंगे। एंड इट कैन हेल्प टू प्रमोट द रेगुलर बाउल एलिमिनेशन। अगर वो उसका जो भी टाइम पीरियड है, जो भी उसका पर्सनल स्केड्यूल है, उस पर रेगुलरली वो स्टूल पास करेगा, तो रेगुलर बाउल एलिमिनेशन हो जाएगा, देयर विल बी नो एनी साइंस ऑफ कॉन्स्टिपेशन, वो रेगुलरली बाउल एम्प्टी हो ही जाएगा। नेक्स्ट इज फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी से भी बाउल ऑल्ट्रेशंस हो सकते हैं। तो पेरिस्टालसिस इज प्रमोटेड बाय फिजिकल एक्टिविटी। जो भी पर्सन इमोबाइल है या फिर कुछ भी नहीं करते, सेडेंट्री है, सो उसमें पेरिस्टालसिस कम होती है। फिजिकल एक्टिविटी से पेरिस्टालसिस प्रमोट होता है। अर्ली मोबिलाइजेशन इज नेसेसरी आफ्टर प्रोसीजर्स एंड सर्जरीज। इसीलिए तो हम कॉन्स्टिपेशन ना हो, स्टूल पास हो जाए, फ्लैटस पास हो जाए, इसीलिए तो हम पेशेंट को अर्ली मोबिलाइजेशन करवाते हैं। सो अर्ली मोबिलाइजेशन इज नेसेसरी, कोई भी प्रोसीजर हो, कोई भी सर्जरी हो, जब तक कॉन्ट्राइंडिकेटेड ना हो। अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है सो वी कैन नॉट मूव द क्लाइंट आउट ऑफ द बेड। पर अगर करवा सकते हैं, डॉक्टर ने बोला है, सो अर्ली एम्बुलेशन करवाना ही है टू प्रिवेंट द कॉन्स्टिपेशन। Spinal cord injury, chronic illness and certain neurological disease can predispose to constipation. अगर पेशेंट की कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, या फिर पेशेंट को बहुत क्रोनिक इलनेस है, या फिर पेशेंट को कोई न्यूरोलॉजिक डिजीज है, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होगा, बिकॉज पेशेंट मूव नहीं कर पाएगा, जो उसकी नर्व्स है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही, सो इसकी वजह से पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं हो रहा है और पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगा। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हमें ध्यान में रखना है, वी हैव टू आल्सो असेस, बिकॉज उससे भी पेशेंट का जो बॉवेल एलिमिनेशन है वो अफेक्ट होता है। सो प्रोलॉन्ग इमोशनल स्ट्रेस can disrupt the digestive process. It usually accelerates the digestion and peristalsis. Yes, पेशेंट को अगर ज्यादा स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से जो नॉर्मल डाइजेस्टिव प्रोसेस होती है वो बढ़ जाती है, और पेशेंट को पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी बढ़ जाती है, एंड पेशेंट हैज टू डेफिकेट। आपने देखा होगा कि सर्टेन पीपल्स आर देयर कि अगर कोई ऐसी बैड न्यूज सुने या फिर सडनली स्ट्रेस आ जाए तो उनको प्रेशर आ जाता है, दे हैव टू गो फॉर द बॉडी। सो उससे पेरिस्टालसिस मूवमेंट इंक्रीज हो जाता है स्ट्रेस से। डिप्रेशन कैन कॉज द डिक्रीज पेरिस्टालसिस एंड लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन। इन द अदर हैंड, अगर पेशेंट डिप्रेस्ड है तो उससे पेरिस्टालसिस मूवमेंट कम हो जाएगी और उससे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। सर्टेन मेडिकेशंस भी है कि जिसकी वजह से इंक्रीज होगी पेरिस्टालसिस और डिक्रीज भी हो सकती है। Medication can cause a change in bowel elimination as a therapeutic effect or as a side or adverse effect. Yes, medication से bowel elimination change हो सकता है, as a therapeutic effect also. पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है और आप लेक्सेटिव दोगे, एक मेडिसिन देते हो, तो आप वो इंक्रीज करने के लिए देते हो। समटाइम्स आपने एंटीकोलिनर्जिक्स दी है, तो एज अ साइड इफेक्ट पेरिस्टालसिस कम हो जाएगा। सो एज अ थेराप्यूटिक इफेक्ट भी बॉवेल एलिमिनेशन चेंज हो सकता है, और एज अ जो भी आपने मेडिसिन दी है उसके साइड और एडवर्स इफेक्ट की वजह से भी बॉवेल एलिमिनेशन ऑल्टर हो सकता है। Laxatives and antidiarrheal agents are indicated for their effect on bowel elimination. जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि लैक्सेटिव्स और एंटीडायरियल एजेंट्स दोगे तो आप इफेक्ट के लिए देते हो। लैक्सेटिव्स क्यों देते हो? कि स्टूल पास करवाना है। एंटीडायरियल्स क्यों देते हो? कि आपको कम करवाना है। सो वी वांट द इफेक्ट ऑन bowel elimination, that's why we are giving certain medication. और साइड इफेक्ट कौन से मेडिसिन के हैं? तो लाइक ओपियोइड एनाल्जेसिक्स स्लोज द पेरिस्टालसिस एंड कॉज द कॉन्स्टिपेशन। वो हम नहीं चाहते, पेशेंट को हमें दवाई देनी पड़ी ओपियोइड, इसलिए हमने दी, बट वी डोंट वांट कि उससे बॉवेल पर अफेक्ट हो, बट हो रहा है, दैट इज अ साइड इफेक्ट। सो ओपियोइड एनाल्जेसिक से पेरिस्टालसिस स्लो हो जाएगी एंड इट कैन लीड टू कॉन्स्टिपेशन। एंटीबायोटिक्स कैन आल्सो डिस्टर्ब द इंटेस्टिनल फ्लोरा एंड कैन कॉज द डायरिया। जो एंटीबायोटिक्स जब भी पेशेंट लेगा तो एंटीबायोटिक्स क्या करेगा? अलोंग विद द बैड बैक्टीरिया, जो इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया है उन्हें भी किल कर देगा, और इंटेस्टिनल फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाएगी और उससे डायरिया हो सकता है एंटीबायोटिक से। Some herbal products are known to have an effect on bowel elimination. Their use should be approved by the PHCP. Certain herbal medicines are there, herbal products भी है कि जिससे bowel elimination alter होएगा। पेशेंट, आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे लेते हैं कि जिनको डायरिया है तो
हर्बल प्रोडक्ट्स लेंगे कि डायरिया कम हो जाए। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है वो भी हर्बल प्रोडक्ट्स लेते हैं, लाइक चूर्ण और वो सब, दैट इज ऑल हर्बल प्रोडक्ट्स बोलते हैं। बट हर्बल प्रोडक्ट्स का यूज करने के लिए पीएचसीपी का ऑर्डर इज रिक्वायर्ड। विदाउट पीएचसीपी ऑर्डर पेशेंट कैन नॉट स्टार्ट एनी हर्बल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट इज पोजीशन। पोजीशन का असेसमेंट आपको करना है। पोजीशन कैन ऑल्सो चेंज द एलिमिनेशन पैटर्न। So the squatting or sitting position is the normal position for defecation. Defecation करने के लिए, स्टूल पास करने के लिए स्क्वाटिंग पोजीशन जो इंडियन टॉयलेट्स में जब हम यूज करते हैं दैट इज द स्क्वाटिंग पोजीशन, और वेस्टर्न टॉयलेट्स में जब हम बैठते हैं दैट इज सिटिंग पोजीशन। So this is the normal position to pass the stool. Exertion of the intra-abdominal pressure is needed for normal defecation. Immobilized client have difficulty when attempting to defecate lying down. जब भी आप defecation करते हो so थोड़ा intra-abdominal pressure तो आपको लगाना पड़ेगा. There is requirement of certain little bit amount of intra-abdominal pressure कि normal defecation हो जाए. But जो patient immobilized है, बेड से बाहर नहीं निकल सकते and they are in supine position, तो आप उसको बेड पान देके सोते सोते ही लाइंग डाउन पोजीशन में उनको डेफिकेट करना है। सो उन पेशेंट में प्रॉब्लम होगा, वो डेफिकेट ही नहीं कर पाएंगे नॉर्मली, जैसे हम करते हैं वैसे वो नहीं कर पाएंगे। When using a bedpan, the head of the bed should be elevated to a position of comfort for the client if not contraindicated. Yes, अगर पेशेंट को आप बेड से बाहर नहीं निकाल सकते और आपको बेड पर ही बेडपान देना है, सो आप क्या कर सकते हो, हेड की पोजीशन अप कर सकते हो और यू कैन प्लेस द बेड पान। सो प्रॉपर पोजीशन मिलेगी तो पेशेंट को भी अच्छा कंफर्ट फील होगा एंड पेशेंट कैन इजीली डेफिकेट। बट अगर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, डॉक्टर ने बोला है कि आपको सुपाइन ही रखना है, यू कैन नॉट इवन एलिवेट द हेड, तो आप नहीं कर सकते। अगर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ना हो तभी आप एलिवेट कर सकते हैं, यू कैन गिव दिस पोजीशन, बट यू कैन। अंडरस्टूड? यस और नो? Online students, are you there or not? Okay. Next assessment is pregnancy. Pregnancy can also alter the normal bowel elimination. So hormonal changes and growing fetus can cause the constipation during pregnancy. जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो देर आर सर्टेन हार्मोनल चेंजेस, फीटस भी ग्रो कर रहा है, सो प्रेशर क्रिएट कर रहा है इंटेस्टाइन पर, सो उससे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. Infection may occur later in the pregnancy due to the mechanical obstruction. फीटस अभी बहुत बड़ा हो गया है, इन द लेटर प्रेगनेंसी फीटस बहुत बड़ा हो गया है, तो उससे मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है. मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन मींस कुछ वजन की वजह से देयर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन, तो उससे इंफेक्शन भी हो सकता है. व्हाट इज इंफेक्शन? दैट इज द नैरोइंग. संकराइजो, दैट इज द नैरोइंग. व्हाट इज इंफेक्शन? फीकल इंफेक्शन मींस स्टूल स्टॉप થઈ ગયો. yes, blockage due to the stool, block हो गया है, stool बहुत भर गया है अंदर, so that is infection. Medications such as those high in iron can also lead to constipation. हमें पता है कि प्रेगनेंसी में फीमेल्स को हम आयरन की टैबलेट्स देते हैं, आयरन की टैबलेट से भी कॉन्स्टिपेशन होता है. सो नेक्स्ट इज पेन. पेन की वजह से भी बॉवेल एलिमिनेशन ऑल्टर हो सकता है, तो वी हैव टू आल्सो असेस फॉर द पेन. अगर पेशेंट को पेन है तो उसको नॉर्मल बॉवेल एलिमिनेशन नहीं होगा. So injuries or tissue disruption in the perianal area due to surgery or other abnormalities can cause the suppression of defecation and can lead to constipation. अगर पेशेंट को इंजरी हुई है या फिर टिश्यू डिस्ट्रप्शन हो गया, टिश्यूज में इंजरी हो गई है, कहां पर? इन द पेरिएनल एरिया, ड्यू टू सर्जरी या फिर कुछ भी एबनॉर्मलिटी की वजह से वहां पर इंजरी हुई, सो पेशेंट को डेफिकेशन के सेंसेशन ही नहीं आएंगे. आपने देखा होगा कि आपको कहीं पर इचिंग हुआ होगा. फॉर एग्जाम्पल्स देर आर सर्टेन पीपल कि कहीं पर बाहर जाता है घर से बाहर, सो उनको सेंसेशन ही नहीं आता, डेफिकेशन सप्रेस हो जाता है, उनको फीलिंग ही नहीं आती कि दे वांट टू गो फॉर द डेफिकेशन. सो इंजरी की वजह से भी डेफिकेशन सप्रेस हो जाएगा और उससे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है. The nurse needs to be alert to the client at risk for bowel alteration and to monitor closely so that measures can be implemented to prevent the alterations. हमें पता होना चाहिए, हमें पता है कि position, pregnancy, then dietary pattern, mobility, physical activity, ये सब की वजह से alterations होती है.
सो हमें पता है कि अगर ये पेशेंट में ये सारी चीजें हैं तो देयर माइट बी अ रिस्क ऑफ बॉवेल ऑल्ट्रेशन। सो हमें पहले से ही मॉनिटर करना है एंड हमें मेजर्स लेने हैं कि पेशेंट को बॉवेल ऑल्ट्रेशंस ना हो। नॉर्मल स्टूल पास जो नॉर्मल डेफिकेशन है वो करता रहे, पेशेंट को ऑल्ट्रेशन ना हो, ऐसे मेजर्स हमें पहले से ही लेने हैं। और आपको कैसे पता चलेगा? आपको असेसमेंट से ही पता चलेगा। वी हैव सीन कि ये जो सारे फैक्टर्स है, एज, अगर पेशेंट ओल्डर एज है तो उसमें कॉन्स्टिपेशन का रिस्क ज्यादा है, बराबर। सो हम पहले से ही ऐसे मेजर्स ले लेंगे बिकॉज उनकी पेरिस्टालसिस एक्टिविटी कम हो गई है, उनमें बॉवेल इनकॉन्टिनेंस के भी रिस्क ज्यादा है, सो हम उसके भी मेजर्स पहले से ही ले लेंगे। बट ये कैसे पता चला? व्हेन यू आर डूइंग असेसमेंट, आपने असेसमेंट किया, एज की वजह से चेंज होगा, डाइटरी और पर्सनल हैबिट्स की वजह से चेंज हो सकता है, फिजिकल एक्टिविटी, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, पोजिशनिंग, प्रेगनेंसी एंड पेन, दिस आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से ऑल्टर हो सकता है। तो जो भी रिस्क में है आपको पहले से ही मेजर्स लेने होंगे। अंडरस्टूड? Yes, यस ma'am. मैम। यस। हाँ। सो अभी हमने पढ़ लिया, असेसमेंट कर लिया कि इन लोगों को बॉवेल ऑल्ट्रेशन हो सकता है। कौन से टाइप्स के ऑल्ट्रेशन होंगे? सो हम बॉवेल ऑल्ट्रेशन एक एक करके पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज कॉन्स्टिपेशन। फर्स्ट ऑल्ट्रेशन इज कॉन्स्टिपेशन, बॉवेल प्रॉब्लम्स। सो उसमें फर्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। What is constipation? It is characterized by infrequent bowel movements, less than 3 per week, and the difficult passage of hard dry stool. Constipation को क्या, constipation किसे बोलेंगे? So जो bowel जो movement है वो infrequent हो गई है। फ्रीक्वेंट होगी तो दैट इज डायरिया, बट ये इनफ्रीक्वेंट हो गई है, कम हो गई है। और कितनी कम हो गई? सो एक वीक में 3 से भी कम हो गई है, पेशेंट 3 बार भी स्टूल नहीं कर रहा है इन होल 1 वीक। सो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिपेशन। और जब भी पेशेंट स्टूल पास करेगा सो कैसा स्टूल होगा? एकदम हार्ड ड्राई स्टूल होगा जो बहुत डिफिकल्ट होगा पास करने में। सो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिपेशन। What are the causes for constipation? क्यों होता है constipation? So let's see box 17.7. First is aging. Aging की वजह से क्यों? Yes, due as the age increases, peristalsis moment decreases. So उसकी वजह से constipation हो सकता है। Avoiding defecation. Patient defecate कर ही नहीं रहा है, patient avoid कर रहा है, so stool भरा ही हुआ रहेगा और उससे constipation हो सकता है। Changes in life routine such as traveling. Yes, जो पेशेंट, सम पेशेंट्स आर देयर लाइक मी, मैं भी कहीं पे ट्रैवल करती हूँ, सो आई एक्सपीरियंस कॉन्स्टिपेशन। मुझे घर पे ही डेफिकेशन आई कैन डू नॉर्मली, मैं बाहर जाकर नहीं कर सकती। तो ट्रैवलिंग की वजह से जो नॉर्मल लाइफ रूटीन है उसमें चेंजेस हुआ तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। क्रोनिक बॉवल प्रॉब्लम है तो भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, पेशेंट सेडेंटरी है, पेशेंट इमोबाइल है, सो उससे भी कॉन्स्टिपेशन होगा। लो फ्लूइड एंड फाइबर इंटेक कर रहा है पेशेंट, दैट कैन ऑल्सो लीड टू कॉन्स्टिपेशन। कोई पेशेंट की न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस है, पेशेंट इज प्रेग्नेंट, पेशेंट इज हैविंग स्ट्रेस और यूज ऑफ ओपिएट्स। ओपिएट्स मींस ओपियोइड मेडिकेशन। सो दिस आर द कॉजेस जिसकी वजह से पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। नेक्स्ट फीकल और बॉवेल ऑल्ट्रेशन इज इंफेक्शन। व्हाट इज इंफेक्शन? हमने अभी देखा, देयर इज अ कलेक्शन ऑफ स्टूल, स्टूल बहुत भर गया और उसकी वजह से देयर इज अ ब्लॉकेज, सो दैट इज कॉल्ड एज फीकल इंफेक्शन। सो इंफेक्शन इज the inability to expel the feces related to unrelieved constipation, which can ultimately result in the intestinal obstruction. इंफेक्शन कब होगा? जब पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हुआ और वो कॉन्स्टिपेशन रिलीव ही नहीं हुआ, अब स्टूल इतना हार्ड हो गया है कि वो निकल ही नहीं पा रहा है। सो जब भी कॉन्स्टिपेशन हुआ था और वो अनरिलीव था, वो रिलीव हुआ ही नहीं, उसकी वजह से फीसिस बाहर नहीं निकले और उन्होंने इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर लिया। देयर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द इंटेस्टाइन ड्यू टू द फीसिस और स्टूल, सो दैट इज कॉल्ड एज इंफेक्शन। confused or debilitated clients are at high risk for infection. इन्फेक्शन किसमें ज्यादा है? तो वो ऐसे क्लाइंट जो कंफ्यूज है, जो डेबिलिटेटेड है, दे आर नॉट मेंटली फिट और दे आर नॉट फिजिकली फिट इनफ कि वो खुद से कुछ कर सकते हैं। पेशेंट इज कोमेटोस, अनकॉन्शियस है, दे आर सो डेबिलिटेटेड, सो उनमें इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा है बिकॉज स्टूल कॉन्स्टिपेशन हो गया एंड वो कॉन्स्टिपेशन भी रिलीव नहीं हुआ तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया। Infection is characterized by repeated urge to defecate for multiple days without successful defecation.
इन्फेक्शन कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है? सो पेशेंट को रिपीटेड अर्जिस होगी, दिन में बहुत बार पेशेंट ऐसे फील करेगा कि मुझे स्टूल पास करना है, स्टूल पास करना है, बट स्टिल पेशेंट सक्सेसफुली डेफिकेट नहीं कर पाएगा। पेशेंट को अर्ज हो रही है, देयर इज अ स्टूल, बट पेशेंट डेफिकेट कर ही नहीं पा रहा है। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज द साइन in infection. Continuous oozing of liquid stool can be indicative of intestinal obstruction. The PHCP is notified if obstruction is suspected. अगर intestine completely obstruct हो गई है, so जितनी जगह बचेगी उतनी थोड़ी थोड़ी जगह में से कैसा होगा? लिक्विड स्टूल oozing होगा. There will be no passage of the stool. Stool pass नहीं होगा because there is intestinal obstruction. पर जो थोड़ी थोड़ी gaps है उसमें से थोड़ा थोड़ा लिक्विड स्टूल ऊजिंग हो रहा है, थोड़ा थोड़ा लीकेज हो रहा है. सो इट इंडिकेट्स कि पेशेंट को इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है. एंड व्हेनेवर यू आइडेंटिफाई और ऑब्स्ट्रक्शन इज सस्पेक्टेड, यू हैव टू नोटिफाई द पीएचसीपी. आपको पीएचसीपी को नोटिफाई करना होगा. नेक्स्ट इज डायरिया. Diarrhea means an increased number of stool with the passage of unformed or liquid stool, often associated with the digestion and absorption condition. The client has difficulty controlling the urge to defecate. डायरिया किसको बोलेंगे? तो पहले तो फ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ स्टूल को हम डायरिया बोलेंगे. तो देयर इज एन इंक्रीज नंबर ऑफ डेफिकेशन. और वो स्टूल कैसा होगा? हमें पता है कि नॉर्मल जो होता है स्टूल वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक लिक्विड फॉर्म में ही होता है. जैसे जैसे असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कॉलम में वो मूव करेगा, धीरे धीरे उसमें से फ्लूइड एब्जॉर्ब होता रहेगा एंड स्टूल हार्ड होता जाएगा. बट ये जो पेशेंट है उसमें फॉर्म ही नहीं हो रहा है अच्छा स्टूल. जैसा लिक्विड फॉर्म में आया था वैसा ही अनफॉर्म्ड स्टूल, लिक्विड स्टूल तुरंत निकल जा रहा है. क्यों निकल रहा है? बिकॉज पेशेंट को कोई डाइजेशन प्रॉब्लम है या फिर इंटेस्टिनल में एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम है, उसकी वजह से लिक्विड स्टूल कंटिन्यूअसली पेशेंट कर रहा है. एंड पेशेंट वो जो अर्ज है उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा. जैसे ही पेशेंट को अर्ज होगा, पेशेंट को भागना ही होगा फॉर द डेफिकेशन. जीआई कंटेंट पास टू क्विकली कॉजिंग द इनएबिलिटी फॉर स्टूल टू फॉर्म. और जो सारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कंटेंट है उतने फास्ट, जितने क्विकली निकल रहे हैं, नॉर्मली धीरे 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 निकलता है तो पूरा पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा. बट ये इतना फास्ट है कि पानी एब्जॉर्प्शन के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है, बैक एब्जॉर्प्शन के लिए, और सारा स्टूल है वो बन नहीं रहा अच्छा, और लिक्विड फॉर्म में ही निकल जा रहा है. डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कैन रिजल्ट फ्रॉम डायरिया इफ द लॉस्ट फ्लूइड इज नॉट रिप्लेस्ड. अगर जो डायरिया हो जाए पेशेंट को और वो फ्लूइड लॉस्ट हो रहा है, बिकॉज नॉर्मली हमारी बॉडी क्या करती है, स्टूल में से फ्लूइड निकाल लेती है और बॉडी में रखती है, पर पेशेंट के स्टूल में से फ्लूइड एब्जॉर्ब हो ही नहीं रहा है, वो स्टूल में ही चला जा रहा है. सो देयर इज अ लॉस ऑफ फ्लूइड. और वो अगर हम रिप्लेस ना करें तो पेशेंट को डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो सकता है. और विच मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होगा? अल्कलोसिस एसिडोसिस क्या होगा पेशेंट को? Metabolic acidosis. हाउ मेटाबॉलिक एसिडोसिस? Diarrhea. Diarrhea. After stomach, the intestinal secretions are alkaline. स्टमक के बाद जो पेंक्रियाटिक जूस, बाइल जूस है, वो सारे अल्कलाइन है, और डायरिया में सारा अल्कलाइन बेस सब निकल जाएगा. सो देयर इज ओनली एसिड इन द बॉडी, सो इट कैन लीड टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस. तो डायरिया अगर ज्यादा ट्रीट ना करो तो पेशेंट को एसिडोसिस भी हो सकता है. नेक्स्ट इज इनकॉन्टिनेंस. अनदर बॉवेल ऑल्ट्रेशन प्रॉब्लम इज इनकॉन्टिनेंस, द इनएबिलिटी टू कंट्रोल द पैसेज ऑफ गैस एंड फीसिस. पेशेंट कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है. जैसे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस था कि लीक हो जा रहा था, पेशेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, होल्ड नहीं कर पा रहा था और निकल जा रहा था. तो इसमें भी ऐसा हो रहा है. पेशेंट फीसिस, स्टूल भी होल्ड नहीं कर पा रहा है, बाथरूम तक जाते जाते तो पेशेंट कपड़े गंदे कर देता. एंड देयर इज ऑल्सो इनएबिलिटी टू कंट्रोल द गैस. गैस भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, पेशेंट फ्रीक्वेंटली गैस पास कर ही जा रहा है. तो दैट इज कॉल्ड एज इनकॉन्टिनेंस. हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन बॉडी इमेज. अगर इनकॉन्टिनेंस होगा तो पेशेंट को बॉडी इमेज पर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा. बिकॉज थिंक, अगर कोई पेशेंट है, एडल्ट है, ऐसे कपड़े गंदे करेगा, सो हाउ अदर्स विल थिंक. सो इट कैन लीड टू significant effect on the body image. Impaired cognition and other physical conditions such as neurological condition can cause the bowel incontinence.
बॉवेल इनकॉन्टिनेंस हेल्दी इंडिविजुअल्स में आपने देखा है? इट इज नॉट पॉसिबल। किस लोगों में ज्यादा होता है? जिनका कॉग्निशन इम्पेयर्ड है, जो मेंटली फिट नहीं है, कोई अदर फिजिकल कंडीशन है पेशेंट को, या फिर कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, उन लोगों में बॉवेल इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलता है। एंटीबायोटिक थेरेपी, क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल और फूड बॉर्न पैथोजेंस आर द कॉजेस ऑफ बॉवेल इनकॉन्टिनेंस मैनिफेस्टेड बाय लूज स्टूल और डायरिया। यस, पेशेंट अगर बहुत लॉन्ग टर्म से एंटीबायोटिक थेरेपी ले रहा है तो पेशेंट को डायरिया हो जाएगा। जब तक पेशेंट वॉशरूम तक जाता है तब तक तो इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, देयर इज अ लीकेज ऑफ स्टूल। तो एंटीबायोटिक थेरेपी, क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल, व्हाट इज दैट? क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल इज, what is Clostridium difficile? ओके, ये इन्फेक्शन में कौन सा प्रिकॉशन लोगे आप? एंटेरिक। कॉन्टेक्ट एंटेरिक Contact. प्रिकॉशन। यस, सो ये इंटेस्टिनल इन्फेक्शन है, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, इंटेस्टिनल इन्फेक्शन है और उसमें डायरिया हो जाएंगे। सो अगर वो है पेशेंट को, या फिर कोई फूड बॉर्न डिजीज हुआ है, कुछ खा लिया और उसकी वजह से डायरिया हो जाता है, तो उससे बॉवेल इनकॉन्टिनेंस हो सकता है एंड पेशेंट को लूज स्टूल और डायरिया होके पेशेंट कंट्रोल नहीं कर पाएगा। पेशेंट जब तक वॉशरूम जाता है देयर इज अ लीकेज। Next is flatulence. Flatulence means there is a gas formation, gas हो जाना. So accumulation of the gas in the lumen of the bowel. बॉवेल की जो सारी ल्यूमेन है उसमें बहुत गैस भर गया है. इट कैन कॉजिंग द फुलनेस एंड एब्डोमिनल क्रैम्प एंड पॉसिबली शार्प एब्डोमिनल पेन. आपने कभी देखा होगा. सो पेशेंट को अगर जो गैस हो जाता है, सीवियर फ्लैचुलेंस हो जाएगा, तो पेशेंट को इतना सीवियर पेन होगा, बहुत जोर से शार्प एब्डोमिनल पेन होता है. सो दैट इज कॉल्ड एज फ्लैचुलेंस. गैस एस्केप्स थ्रू द माउथ और फ्रॉम द एनस. अभी जो भी गैस बन गया है इंटेस्टाइन में, तो गैस कहीं से तो निकलने का ट्राई करेगा. सो माउथ से भी निकल सकता है और एनस से भी निकलेगा. माउथ से निकलेगा तो इन फॉर्म ऑफ, यस, बर्पिंग और ब्लैंचिंग. बेल्चिंग वी कैन से, बेल्चिंग नॉट ब्लैंचिंग. सो बेल्चिंग और बर्पिंग के फॉर्म में वो गैस निकलेगा एंड फ्रॉम एनस थ्रू द इन फॉर्म ऑफ फ्लैटस. फ्लैटस से वो गैस निकलेगा. नेक्स्ट इज हेमरॉइड्स. हेमरॉइड्स इज, व्हाट इज हेमरॉइड्स? Veins. वेन डायलेट थे सर। Yes, there is a dilatation of the veins of the anus. So engorgement and dilation of the veins in the rectum lining, internal or external, often causing pain. हमने बताया कि एम्ब्रॉइड्स के स्टेज होते हैं, एक्सटर्नल भी होती है, इंटरनल भी होती है. सो वो क्या है? बेसिकली जो वेन्स है रेक्टम की, जो एनस की, वो एनलार्ज हो गई, एनलार्ज होके एकदम टॉर्टल्स हो जाएगी, एंगॉर्ज हो जाएगी. तो और उससे पेशेंट जब भी डेफिकेट करेगा, there will be pain. It is caused by straining, pregnancy and certain conditions such as heart or liver failure. वो क्यों होता है हेमरॉइड्स? सो जब भी पेशेंट को स्ट्रेन लगाना पड़े, ज्यादा प्रेशर लगा दे, तो उसकी वजह से हेमरॉइड हो सकता है. प्रेगनेंसी की वजह से भी हो सकता है. पेशेंट को ऑलरेडी कोई कंडीशन है लाइक हार्ट की और लीवर फेलियर की है, सो उससे भी, बिकॉज फ्लूइड बहुत ज्यादा है, फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, तो वेन्स पर प्रेशर होगा, सो उससे भी हो सकता है. जो डायग्नोस्टिक टेस्ट सारे हमने ऑलरेडी चैप्टर 49, दैट इज द एमएसएन में जो जीआई सिस्टम है उसमें हमने ऑलरेडी पढ़ लिए थे कि डायग्नोस्टिक टेस्ट, कोई भी बॉवेल ऑल्ट्रेशन हो, बॉवेल डिजीज हो, तो हमें कैसे पता चलेगा? सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग. कल से हम बॉवेल डाइवर्जन देखेंगे. बॉवेल डाइवर्जन इज अनदर ऑल्ट्रेशन. हम उसमें भी पाथवे, जस्ट लाइक यूरिनरी हम अलग अलग करते थे, तो उसमें भी करना है. So let's do a quick revision. आज हमने क्या देखा? So today Ma'am, we have seen, yes, uh, just want to ask you, I gave test first time on Saturday. So when I will be okay, getting my that result? okay. So most probably today you will get the result. जो भी आपने ईमेल आईडी से आपने टेस्ट दिया था, वो ईमेल आईडी पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा. Okay, thank Yeah, okay. So let's do a quick revision of our today's class. आज हमने क्या देखा? So हमने प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशंस देखे किसके? यूरिनरी डाइवर्शन। यस, यूरिनरी डाइवर्जन्स जो हमने स्टोमा क्रिएट किए थे उसके हमने देखे. सो प्री ऑपरेटिव फेज में आपको क्या ध्यान रखना है वो हमने देखा. व्हाट इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट?
Okay, but about irrigation, what about irrigation? Whenever there is a catheter, irrigation में क्या ध्यान रखना है? ऑलवेज चेक द प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर ने कितना अमाउंट बोला है, कितना फ्रीक्वेंसी में बोला है, कौन सा सॉल्यूशन आप यूज करोगे, इरिगेशन सॉल्यूशन, वो आपको सिंपली डॉक्टर ने जो बोला है वो ही फॉलो करना है। एंड इरिगेशन हम क्यों करते हैं? यस, टू प्रिवेंट द ऑब्स्ट्रक्शन, टू मेंटेन द पेटेंसी, सो ऑलवेज चेक द प्रिस्क्रिप्शन। और कभी भी यूरिनरी सर्जरी हो, यूरिन रिलेटेड हो, सो हमें यूरिन आउटपुट क्लोजली मॉनिटर करना ही है। एंड इट शुड बी एटलीस्ट 30 ml पर आवर, उससे कम तो नहीं चलेगा। पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन देखिए, उसमें वाइटल साइंस, इंसिजन चेक करना है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू नोट इन पोस्ट ऑपरेटिव केयर related to stoma? Stoma color. Yes, stoma color is very important. So what is the normal stoma? Red and moist. Red and moist. So what are the abnormal colors? Purple. Dark and dusky. Dark, dusky, purple, black. What does it indicate? Necrosis. 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 Another abnormal color is Pale. pale. Yes. Yes. What does it indicate? Bleeding. Bleeding. Internal Internal. Yes, internal bleeding हो रहा है. So the stoma becomes pale. So you have to remember this. फिर सारी पोस्ट ऑपरेटिव केयर देखी, देन रिस्टोरेटिव केयर देखी कि आप यूरिनरी एलिमिनेशन कैसे प्रमोट कर सकते हो विदाउट सर्जरी। आप कुछ ऐसा यूज करोगी कि जिससे पेशेंट की नॉर्मल यूरिनरी एलिमिनेशन होती रहे। तो उसमें अपने फर्स्ट फ्लूइड इनटेक देखा, ऑप्टिमम कितना है उतना तो लेना ही पड़ेगा। कितना है, व्हाट इज द ऑप्टिमल लेवल ऑफ फ्लूइड? 2 to 2.5 लीटर, 2.3 लीटर, दैट इज ऑप्टिमल। पर मेक श्योर कि वो पेशेंट को कोई हार्ट डिजीज, रीनल डिजीज, लिवर डिजीज, कोई फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड वाला डिजीज ना होना चाहिए। अगर नहीं है, सो दिस इज द ऑप्टिमल, इतना तो लेना ही है। इट कैन, पेशेंट कैन ऑल्सो कंज्यूम अप टू 3 लीटर, 3 लीटर भी ले सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। उससे अगर ज्यादा वाटर इंजेक्शन हो जाएगा तो क्या होगा? Fluid overload. Fluid overload, but there is a condition. Excessive water consumption can lead to Hyponatremia. ओके, हाइपोनेट्रीमिया होगा, पर क्यों हुआ हाइपोनेट्रीमिया? Dilute થઈ ગયું sodium. સોડિયમ ડાયલ્યુટ થઈ જાય. यस, सोडियम डाइल्यूट हो गया, बट द कंडीशन इज कॉल्ड एज, पेशेंट की डेथ भी हो વોટર जाएगी। ઇન્ટોક્સિકેશન. वाटर इंटॉक्सिकेशन, यस। सो एक्सेसिव वाटर कंजप्शन कैन लीड टू वाटर इंटॉक्सिकेशन। और वाटर इंटॉक्सिकेशन में क्या होता है, सोडियम डाइल्यूट होके कम हो जाता है, सीवियर हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। एंड वी नो कि सीवियर हाइपोनेट्रीमिया होगा, सो विच ऑर्गन विल बी अफेक्टेड डायरेक्टली? Brain. બ્રેન. ब्रेन। और पेशेंट को सीजर आएंगी, पेशेंट कैन गो टू कोमा, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो रिमेम्बर दिस थिंग्स, ये सब हमें ध्यान में रखना है। देन एलिमिनेशन हैबिट आप अच्छे से करवा सकते हो कि दिन में जाना है, रात में नहीं। दिन में मतलब वॉइडिंग करना है, कितने टाइम में करोगे। पेशेंट को अगर वॉइड करना है तो आप उसको प्राइवेसी दोगे तो अच्छे से वो वॉइड कर पाए। मैम, रनिंग वाटर, यस। ફ્લુઇડ આપણે ઓવરલોડ કરીએ પણ આપણી એલિમિનેશન સિસ્ટમ બરાબર હોય તો વાંધો ના આવે. हाँ, एलिमिनेशन सिस्टम इज गुड, देन यू कैन कंज्यूम। बट જે વોટર ઇન્ટોક્સિકેશન હોય કેવી રીતે થાય કે પેશન્ટ, ફોર એક્ઝામ્પલ હું અત્યારે પાણી પીઉં છું, અત્યારે જ 1 લીટર એમને જ ફટાફટ પી ગઈ, પછી ફરી 1 hour પછી ફરી 1 લીટર પી લીધું, તો ધેટ ઇઝ એબનોર્મલ। તમે જ્યારે સનલાઇટમાં હશો, તમે જ્યારે એક્સેસિવ વર્ક કરશો, ત્યારે તમારું કન્ઝપ્શન ઓલરેડી 3000 થી ઉપર જતું રહેશે, બીકોઝ યોર બોડી હેઝ રિક્વાયરમેન્ટ। એ વખતે ચાલે, બટ અનનેસેસરીલી ઓવર કન્ઝ્યુમ થઈ જાય ફ્લુઇડ વોલ્યુમ, એનું રીનલ ફંક્શન જ બરાબર નથી, એટલું ફ્લુઇડ નીકળતું જ નથી, પેશન્ટ લે છે, તો ઇટ કેન લીડ ટુ વોટર ઇન્ટોક્સિકેશન। બાકી તો નોર્મલી તો લેવાય અકોર્ડિંગ ટુ નીડ। હું અગર વધારે કામ કરીશ, હું અગર તાપમાં જઈશ, તો મારી બોડીને વધારે પાણીની જરૂર પડશે। આઈ હેવ ટુ કન્ઝ્યુમ મોર ફ્લુઇડ દેન 3000 ml। ઓકે, ઓકે, नेक्स्ट एलिमिनेशन हैबिट्स આપણે सॉरी एलिमिनेशन हैबिट्स हमें प्रॉपर्ली मेंटेन करनी है कि जिसकी वजह से पेशेंट का प्रॉपर यूरिन एलिमिनेशन हो सके। कंप्लीट एम्प्टिंग भी होना चाहिए, फॉर दैट नॉर्मल पोजीशन देनी है। मेल्स स्टैंडिंग पोजीशन में कंप्लीट एम्प्टिंग ऑफ ब्लैडर कर सकते हैं, फीमेल सिटिंग पोजीशन में कंप्लीट ब्लैडर एम्प्टिंग कर सकते हैं।
तो यू हैव टू गिव द नॉर्मल पोजिशन। जो पेशेंट इमोबिलाइज है, जिनको सोते सोते करना है, देयर माइट बी रिस्क कि वो प्रॉपर एलिमिनेट ना कर पाए। सो आपको चेक करना होगा पोस्ट वॉइड रेसिड्यूअल कितना है। इन्फेक्शन प्रिवेंशन करना है, सो कैसे कर सकते हो, तो फ्लूइड इंटेक ज्यादा करके, पेरिनियल हाइजीन मेंटेन करके, और रेगुलर जो यूरिनेशन पैटर्न है, हैबिट है, वो रेगुलर हेल्दी हैबिट से करना है। गुड थिंग फॉर फीमेल्स इज जब भी यूरिनेशन करते हैं सो दे हैव टू वाइप फ्रॉम फ्रंट टू बैक, सो फ्रॉम क्लिटोरिस टू एनस उन्हें वाइप करना है एवरी टाइम दे पास द यूरिन। सो उससे भी अच्छा हाइजीन मेंटेन रहेगा और इन्फेक्शन प्रिवेंट हो सकता है। लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे, लाइक फूड्स, ऐसे फूड्स जिससे ब्लैडर इरिटेशन होता है, लाइक कॉफी, टी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, चॉकलेट, स्मोकिंग, वो सब अवॉइड करना होगा। कॉन्स्टिपेशन ना हो, यूटीआई ना हो, इसके लिए पेशेंट को एडिक्वेट हाइड्रेशन मेंटेन रखना होगा, गुड पेरिनियल हाइजीन वो सब मेंटेन रखना होगा। जिन लोगों को एडिमा का प्रॉब्लम होता है, लोअर एक्सट्रीमिटी का एडिमा का प्रॉब्लम है, तो वो लोग आफ्टरनून में लेग्स एलिवेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से डे टाइम वॉइडिंग प्रमोट होगा और नाइट टाइम में उनको नहीं जाना पड़ेगा। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करवा सकते हैं जिन लोगों को इनकॉन्टिनेंस है, स्पेसिफिकली स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, तो उनमें पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करवाना है। ऐसे कीगल एक्सरसाइज इज द बेस्ट एक्सरसाइज, उसको पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज को जो भी हम करवाते हैं उसको कीगल एक्सरसाइज बोलते हैं। उनको फिजियोथेरापी की भी जरूरत पड़ेगी, जिन लोगों के बहुत वीक हो गए मसल्स तो उनको रिहेबिलिटेशन की जरूरत पड़ेगी, एंड देयर माइट रिक्वायर कंप्लीट फिजिकल थेरापी फॉर द पेल्विक मसल्स। ब्लैडर ट्रेनिंग देना है कि कब आपको यूरिन होल्ड करना है, कब आपको जाना है। फ्रीक्वेंसी है तो आपको फ्रीक्वेंटली यूरिन होल्ड करना है, यू कैन नॉट गो फॉर वॉइडिंग फ्रीक्वेंटली। और जब भी अर्ज फील होती है तो आपको उससे तुरंत पहले ही जाना है। तो जब भी ऐसे पेशेंट को लगेगा कि हाँ मुझे अर्ज हो रही है, तो व्हाट पेशेंट कैन डू, डीप ब्रीथिंग करके थोड़ी अर्ज सबसाइड करनी है, देन पेशेंट कैन गो फॉर द वॉइड। टॉयलेटिंग स्केड्यूल्स कर सकते हैं, नॉर्मली एवरी 2 to 3 आवर आपको पेशेंट को बोलना है कि गो फॉर द वॉशरूम, गो फॉर यूरिनेशन, ऐसे 2 to 3 आवर्स आप बोलोगे पेशेंट को। और ये पेशेंट में पेशेंट खुद से स्टिक नहीं रह पाएगा, बिकॉज पेशेंट इज नॉट कॉग्निटिव उसका इम्पेयरमेंट हो गया है, तो पेशेंट इज नॉट मेंटली हेल्दी। आपको स्टिक रहना है, आपको हर 2-3 घंटे में पेशेंट को वॉइडिंग करवाना है। नेक्स्ट इज कैथेटराइजेशन। जो भी पेशेंट को क्रोनिक रिटेंशन रहता है, जो पेशेंट ब्लैडर एम्प्टी नहीं कर पाते कंप्लीटली, तो उनमें आपको कैथेटराइज करना होगा। और अगर कैथेटराइज करते हो और हर कैथेटराइजेशन पे 400 ml यूरिन निकल रहा है, तो इट इंडिकेट्स कि हाँ अभी अच्छे से वॉइड हो गया है। बट स्टिल कैथेटराइजेशन इज इन्वेजिव प्रोसीजर, सो इट विल रिक्वायर पीएचसीपी प्रिस्क्रिप्शन, उसके बगैर आप नहीं कर सकते, अननेसेसरली खुद से नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमने देखा बॉवेल एलिमिनेशन। सो फर्स्ट उसमें असेसमेंट करोगे आप, एज, एज की वजह से बॉवेल एलिमिनेशन ऑल्टर होता है। देन डाइटरी और पर्सनल हैबिट्स, पेशेंट का डाइट कैसा है, फाइबर रिच फूड खाता है या नहीं, गैस फॉर्मिंग फूड्स खाता है या नहीं, देन फ्लूइड इनटेक कैसा है। सो डाइटरी और पर्सनल हैबिट की वजह से भी बॉवेल एलिमिनेशन में ऑल्ट्रेशन हो सकते हैं, तो यू हैव टू असेस दैट आल्सो। फिजिकल एक्टिविटी से भी बॉवेल ऑल्ट्रेशन होता है। फिजिकल एक्टिविटी कम होगी तो बॉवेल मूवमेंट कैसी हो जाएगी, yes there is a decreased peristalsis, so वो भी डायरेक्टली बॉवेल ऑल्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार है। सो यू हैव टू चेक, यू हैव टू असेस द फिजिकल एक्टिविटी आल्सो। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से भी बॉवेल ऑल्ट्रेशन हो सकते हैं। अगर इमोशनल स्ट्रेस ज्यादा है तो उससे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इंक्रीज होगा, डिप्रेस्ड है क्लाइंट तो उससे कम हो जाएगी। मेडिसिन है तो मेडिसिन दो टाइप की होती है, एक तो हम इफेक्ट चाहते हैं, वी वांट कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कम हो या ज्यादा हो, इसीलिए हम दे रहे हैं। और दूसरी मेडिसिन ऐसी है कि वी डोंट वांट, हम नहीं चाहते कि वो बॉवेल पर असर करे, बट स्टिल दे आर क्रिएटिंग इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स ऑन द बॉवेल। सो ऐसे दो टाइप्स की मेडिसिन आती है। सो ये सब आपको ध्यान में रखना है। पोजिशनिंग भी ध्यान में रखती है। नॉर्मल पोजिशन कौन सी है फॉर डेफिकेशन, दैट इज स्क्वाटिंग और सिटिंग। तो पेशेंट जो भी इमोबिलाइज है तो सोते सोते वो नॉर्मली डेफिकेशन नहीं कर सकते, सो वो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, उनका हेड एलिवेट करके थोड़ा कंफर्टिंग पोजीशन दे सकते हैं, बट अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो हम नहीं करेंगे। प्रेगनेंसी के वजह से भी ऑल्ट्रेशन हो सकते हैं, प्रेगनेंसी की वजह से कॉन्स्टिपेशन होगा, पेन की वजह से भी प्रॉब्लम होगा, बिकॉज पेशेंट को अगर सर्जरी की है या फिर कोई इंजरी हुई है तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा और पेशेंट नॉर्मली पास नहीं कर पाएगा। सो इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें पहले से ही रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं कि ये पेशेंट को हमने ये असेसमेंट किया और असेसमेंट में ये प्रॉब्लम सीखे, तो हमें पता है कि पेशेंट को प्रॉब्लम होगा, ऑल्ट्रेशन होगी।
सो हमें पहले से ही वो मैनेज करना होगा। फिर हमने बॉवेल ऑल्ट्रेशंस पढ़ी। सो फर्स्ट हमने उसमें देखा कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मीन्स क्या कि जो बॉवेल कंटेंट है, जो फीसिस है, वो पास नहीं हो रहा है, बहुत उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। कितनी कम हो गई है एक वीक में? लेस देन 3 भी नहीं है, पूरी 3 से भी कम है। और जो पास हो रहा है दैट इज डिफिकल्ट टू पास दैट स्टूल, और वो एकदम हार्ड और ड्राई स्टूल हो गए। देन हमने उसके कॉजेस देखे कि कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है। सेकेंड हमने ऑल्ट्रेशन देखा, दैट इज इम्पेक्शन। व्हाट इज इम्पेक्शन? जो कॉन्स्टिपेशन हुआ था पेशेंट को, वो कॉन्स्टिपेशन रिलीव ही नहीं हुआ, वो स्टूल निकला ही नहीं। सो वो स्टूल अंदर जमा होके पूरा ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया इंटेस्टाइन को, एंड इट इज कॉल्ड एज इम्पेक्शन। तो इन्फेक्शन कौन से पेशेंट में ज्यादा होगा? जो कंफ्यूज है, बहुत ही डेबिलिटेटेड है, लाइक कोमेटोज है, अनकॉन्शियस है, वैसे पेशेंट में इन्फेक्शन के रिस्क ज्यादा है। और इन्फेक्शन है तो आपको कैसे पता चलेगा? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स? फीलिंग अर्ज विदाउट Totally और पेशेंट को अर्ज हो रही है, पेशेंट विल टेल यू आई वांट टू डेफिकेट, पर डेफिकेशन हो ही नहीं रहा है, उतना हार्ड हो गया है स्टूल, डेफिकेशन हो ही नहीं रहा है। सो इट इंडिकेट्स कि पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया। एंड व्हेनेवर देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन साइन, आपको कैसे पता चलेगा कि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है? ऊजिंग oozing होगा, होता है। थोड़ा लिक्विड स्टूल ऊजिंग होगा वहां से। एंड whenever the obstruction signs are suspected, what is your duty? You have to immediately notify the PHCP. Then diarrhea. Diarrhea means frequently passage of stool। और कैसा स्टूल हो रहा है? कंप्लीटली लिक्विड स्टूल हो रहा है। पेशेंट वो जो अर्ज हो रही है वो कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा, पेशेंट को तुरंत ही पास करना होगा। और जो सारे जो जीआई सब्सटेंस है वो इतने फटाफट पास हो रहे हैं कि फ्लूइड एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा और लिक्विड फॉर्म में ही निकल जा रहा है। अगर हम डायरिया को ट्रीट ना करें, जो डायरिया में फ्लूइड लॉस हो रहा है वो हम रिप्लेस ना करें, तो इट कैन लीड टू मेटाबॉलिक एसिड। यस मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस एंड डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट हमने देखा इनकॉन्टिनेंस। इनकॉन्टिनेंस मींस पेशेंट कैन नॉट कंट्रोल। व्हाट कंट्रोल नहीं कर सकता? स्टूल भी कंट्रोल नहीं कर सकता, गैस भी कंट्रोल नहीं कर सकता, और उससे बॉडी इमेज पर असर पड़ेगा। कौन से पेशेंट को कंट्रोल नहीं कर सकता? जो मेंटली अनस्टेबल है, लाइक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, कोई ऐसे फिजिकल कंडीशन है, या फिर उनका कॉग्निशन वो अच्छे नॉर्मल कॉग्निशन नहीं है उनका, सो उन लोगों में इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलता है। दूसरे कौन से पेशेंट में देखने को मिलेगा इनकॉन्टिनेंस? जो एंटीबायोटिक थेरेपी पर है लॉन्ग टर्म से, क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल का इन्फेक्शन है, फूड बॉर्न कोई इन्फेक्शन हो गया है, उसकी वजह से डायरिया हो जाएगा, और पेशेंट जब तक वॉशरूम में जाएगा तब तक तो देयर इज इनकॉन्टिनेंस, वो कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हमने फ्लैचुलेंस देखा। फ्लैचुलेंस मींस गैस प्रोडक्शन, accumulation of the gas is called as flatulence। और अगर फ्लैचुलेंस हो जाएगा, गैस फॉर्मेशन हो जाएगा, तो पेशेंट को सिवियर एब्डोमिनल पेन होगा। और वो गैस कहाँ से निकलेगा? आपको कैसे पता चलेगा कि वो पेशेंट को फ्लैचुलेंस हो गया है? पेशेंट फ्रीक्वेंटली पेशेंट फ्रीक्वेंटली फ्लैटस पास करेगा, बेल्चिंग करेगा, बर्पिंग करेगा, सो उससे पता चलेगा कि पेशेंट को गैस हो गया है। हेमरोइड्स, व्हाट इज हेमरोइड्स? Dilation of veins. Dilation of veins. Which veins? Legs veins? एनस Rectum Rectum की lining. वेन। यस, जो एनस की वेन्स है वो एनलार्ज हो गए हैं। एंड वो हेमरोइड्स इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, एंड इट कैन कॉज पेन। क्यों होता है हेमरोइड्स? स्ट्रेनिंग के यस, जब पेशेंट डेफिकेशन करने के लिए बहुत स्ट्रेन करता है, तब प्रेगनेंसी में सर्टेन कंडीशंस लाइक हार्ट और लीवर फेलियर, तो उसमें हो सकता है। एनी डाउट टिल दिस? आज तक आपने जो पढ़ा अभी, इसमें कोई डाउट है? No, ma'am. Okay, so make sure tomorrow is holiday. Tomorrow we are not having any class. कल holiday है, so see you directly at 9 AM on Wednesday. Tomorrow there is no morning class. Morning class कल नहीं है, so we are having directly morning class on Wednesday. Okay? ओके मैम। Yeah. Okay, thank you. मैम मैडम Yes. मैम मैं
ओके मैम। मैम Okay, एग्जाम में, हेलो मैम, yes, yes. मैम एग्जाम में जो मैम ड्रग कैलकुलेशन आया था ना मैम, मैम वो हाँ. थोड़ा सा एक्सप्लेन करने से अच्छा। Okay. So you are having problem. आपको वो अभी नहीं पता चल रहा है कैसे करना है. यस मैम, मैम वो ml पर आर में मैम आर तो आर मुझे मैम थोड़ा सा मतलब डाउट में थी कि आवर तो मेंशन नहीं किया हुआ है। Okay. So have you attended that lecture? आपने वो lecture attend किया था ड्रग कैलकुलेशन वाला? यस मैम। वो रिकॉर्डेड सेक्शन भी आपने पढ़ा था, फिर भी आपको डाउट है, नहीं पता चल रहा है? यस मैम, मैम वो बुक वाला मैम समझ में आ गया है, लेकिन जो मैम क्वेश्चंस में था एग्जाम में करना. वो हाँ. doubt नहीं था मैम। Okay. So I'll arrange a lecture for you, or according to your convenience or my convenience, I'll arrange a lecture and I'll make you understand. यस मैम, योर Okay. बुक। हाँ. But please kindly message me कि आपको ये चैप्टर के लिए चाहिए, because I used to forget everything. कौन से? मैम चैप्टर नहीं मैम, जो एग्जाम में आया था ना मैम क्वेश्चंस, उसमें Okay. मैम वो आवर मैम मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, आवर मेंशन नहीं है लग रहा है, वही मैं ml Okay, पर so you आर में have one ML problem पर R in one question. ये वन क्वेश्चन नो मैम, मैम वो ड्रग कैलकुलेशंस जो क्वेश्चंस था। हाँ, तो आपको उसमें प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि आपको आ ही नहीं रहा है कि ड्रग कैलकुलेशन कैसे करना है, एक क्वेश्चन मैम में आ आपको प्रॉब्लम था. यस मैम, यस मैम। ओके, ओके. सो टेल मी कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम था, एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि ये कौन कैसे सॉल्व करना था या क्या प्रॉब्लम था. आई विल सॉर्ट इट आउट. ओके मैम, हाँ, क्वेश्चन आपके पढ़ पास के आपने स्क्रीनशॉट लिया था वो क्वेश्चन का? नहीं मैम। ओके. सो मैं आपको आंसर की शेयर करूँ, जस्ट सेंड मी अ मैसेज कि मैम शेयर मी द आंसर की, मैं रिजल्ट शेयर करूँ, उसके बाद मुझे मैसेज करना और उसमें से बताना कि कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम था. यस मैम। ओके. यस. अनदर स्टूडेंट, किसी को कुछ डाउट था? समवन इज आल्सो યસ મેમ। ट्राइंग टू. મેમ हाँ. એક એક ક્વેશ્ચન હતો ને જે પોપિંગ સાઉન્ડ એવિસરેશન વાળો ક્વેશ્ચન હતો, એમાં સિલેક્ટ ઓલ એપ્લાય હતું ને, પણ એમાં એક જ એક ઓપ્શન ના સિલેક્ટ મેમ, થતો તો વધુ નતો થઈ જતો. એમાં हाँ એક मैम, જ तो select एम થતું હતું. हाँ दैट आल्सो मैम। हाँ, हाँ. એ મને સ્ટુડન્ટ્સે કીધું હતું કે there is a problem, but already ongoing test હતો, so I cannot change that. હા, but એ મને ખબર હતી કે એક ઓપ્શન એવું હતું કે જેમાં પ્રોબ્લેમ થયો હતો. એન્ડ મેડમ મારે પ્રોબ્લેમ થતો હતો ને, તો મેં રાત્રે મોડા આપ્યો ને, તો મારું સબમિટ થઈ ગયું છે, એટલે કદાચ તમે જોઈ લેજો. હા, I see. થઈ ગયું હશે. તમારામાં લખાઈને આવ્યું કે your answers has been recorded successfully, તો it means કે સબમિટ થઈ ગયું છે. हाँ मैम, नेक्स्ट टाइम में मारे એવું નતું હોય, બટ આ ટાઈમ में तो એવું હતું કે યોર આન્સર ઇઝ રેકોર્डेड, તો હા. मतलब આ વખત મારું આવી ગયું હશે. હા, બસ. અનધર કોઈ બીજા કોઈને કશો ડાઉટ છે? મેન્ટલ હેલ્થ નો ટેસ્ટ તમે આજે પણ આપી શકશો, એની લિંક કાલે ક્લોઝ થશે અને ઓકે. FY ની તો લિંક ક્લોઝ થઈ ગઈ છે. ઓકે. ઓકે. એની અધર ડાઉટ્સ? मेंटल हेल्थ नर्सिंग का मैम मैं नहीं दे पाऊंगी मैम एग्जाम। ओके, नो प्रॉब्लम. आई अंडरस्टैंड कि आपने स्टडी नहीं किया है, सो इट इज डिफिकल्ट फॉर यू. इफ यू डोंट वांट टू गिव, यू कैन नॉट गिव इट. इट्स नो वरीज. ओके. ओके, so see you directly on Wednesday. Thank you. थैंक यू मैम. Thank you. Thank you, ma'am. You, ma'am.